स्टार्ट करें सर? जी आप स्टार्ट करें। पार्टिसिपेंट ज्वाइन कर लेंगे धीरे धीरे ग्रेजुअली, आई थिंक सो। ठीक 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 है। Participant, good evening to all of you. Today we have a very learned speaker from the Department of Computer Science, Aligarh Muslim University, Aligarh, Professor and Dr. Aasim Zafar Sahab. Aasim Zafar Sahab holds Master in Computer Science and Application and obtained his degree of PhD from Computer Science from Aligarh Muslim University, Aligarh. His research areas and special interest includes mobile ad hoc and sensor networking, image processing and video analytics, information retrieval, e-system, e-security, virtual learning environment, neuro-fuzzy and soft computing, and software engineering. His area of teaching, I think, is a number of area of teaching and includes computer networks, network security, software engineering, e-system, database management system, and computer programming. He has presented many papers in national and international conferences and published various research papers in journals of international repute. Professor Zafar has a teaching and research experience of more than 27 years, both at national and international level. He has executed NMEICT EDRP project funded by MHRD, Government of India, and co-PI, which was executed in consortium mode with AMU, being one of the partner institute with a share of rupees 1.2 crore, and IIT Kanpur, being the coordinating institute of Aligarh Muslim University. Aligarh successfully contributed two major outcomes, namely a cloud-based multilingual and multi-institutional library management system, popularly known as LibMS, and an election management system, EMS, to this project. Participants during his 5-year tenure of international teaching assignment at King Abdulaziz University, Jeddah, he has executed 3 research projects, 2 DSR funded, that is Saudi Riyal 50,000 each, and PI, and 1 funded by KACST, that is Saudi Riyal 2 million. That is a very huge amount, I will say, if you will convert into Indian rupees, as co-PI, project investigator. He was awarded with Excellence in Teaching Award at KAU, King Abdulaziz University, Jeddah. Besides teaching and research work, Professor Aasim Zafar Saab has a rich administrative experience and is actively involved in various developmental work of university, that is Aligarh Muslim University, in various capacities. He has served as a
Chairperson, Head Department of Computer Science during 2021 to 2024. He is presently UDC SWAM Coordinator of Aligarh Muslim University, Coordinator of IGNOU Study Center, AMU, Coordinator of University Website Committee, Convener of Digital Monitoring Cell, Member CIQA and CDOE AMU, and member of various high-powered committees constituted by the Honorable Vice Chancellors of Aligarh Muslim University. He has immensely contributed in ICT infrastructure development of the Aligarh Muslim University. At KAU, Professor Zafar successfully led the academic accreditation unit of FCIT, King Abdulaziz University, in the capacity of director to achieve ABET, American Accreditation Board of Engineering and Technology accreditation. Apart from this, Aasim Zafar Saab has been actively working in the area of e-learning and utilizing open source ICT tools and technologies in research, teaching and learning, and students' evaluation since 1995, both at the graduate and postgraduate level. He has served CDOE AMU Aligarh as a coordinator of e-learning programs. He has expertise in educational technologies and contributed in spreading the culture of ICT enabled pedagogy among the teachers of higher education institutions. Through various workshops, orientation programs, teaching and training, and capacity building programs, he has also organized various webinars, workshops, and training programs on e-content development and ICT related topics. Professor Aasim Zafar Saab is a valuable resource person, and I will say a very key resource person of the AMU HRDC, and delivered skill-based technical session lectures across the country for faculty development program, faculty induction program, refresher courses, orientation programs at UGC, HRDCs, not only Aligarh Muslim University, but different HRDC of India on e-learning, SWAM, MOOCs, e-content development, capacity building of blended learning, educational technologies for online teaching and learning, learning management system, and e-governance, etc. Participants in these lines today, Professor Aasim Zafar Saab is going to deliver about on the topic e-governance, and I think whatever I have put before you about Professor Aasim Zafar Saab is a brief introduction. And I think he will qualify when he will speak on the topic. And if you really want to know much more about Aasim Zafar Saab, you can visit Department of Computer Science Aligarh Muslim University website, and you will find the detailed CV about the Aasim Zafar Saab. With these words, sir, I would request you to kindly come on the dais and speak on the e-governance, the topic which is given to you, sir. Thank you, sir. Sir, mic over to you. Thank you, Aftab Saab, for your very detailed introduction. Dear participants, very good evening to all of you. I hope, am I audible to all of you? Please confirm. Yes, sir. Audible, sir. Okay, fine. So today we will be, as Professor Aftab Sahab has told you, that I'll be talking on the topic of e-governance. So in the 1.5 hour session, we will be basically discussing how we can implement e-governance system in higher educational institutes, maybe in our college, in our university, or in our institutions. So that will be the crux of my talk for today. So before we start, we will have to see what are the agenda we will be talking about in 1.5 hour session. So that we will be talking about what is e-governance and what is the role of technology in implementing e-governance in higher institutes of learning, especially in universities and colleges. What are the various service delivery models for e-governance? After that, we'll be seeing, one moment. Hello. Hello. Okay. Next, we will be discussing some of the success stories of public-private model. That is, we will see there are various models which are available and which are known to us basically. That is passport seva, healthcare system, tax return
filings, etc. So out of these, we will see one or two as the time permits over here. Next, we will see e-governance systems in universities and what are the new education or national education policy 2020 mandate that we will see in this with respect to e-governance. Next, we will discuss what are the present status of e-governance system or e-governance implementations in Indian universities. So we have a study over here, and we will discuss that study to show you the present or to demonstrate the present status of e-governance implementation in Indian universities. After that, we will see how we can implement e-governance system in universities. So after knowing all these things, if we are eager to implement e-governance system in our university, what are the steps and what are the criteria, what are the requirements, and how we can proceed further in this direction for implementation of e-governance system in our university. Next, we will discuss some success stories of e-governance in India. After that, if the time permits, we will see e-governance best practices, e-governance scalability, etc. So before we start, first of all, we will see, is my slide visible to all of you? Please confirm. Is this slide visible to all of you? Yes, sir, visible. Yes, sir. Fine. So we will first, before we go ahead, we will see what is the definition of the government, and related term is there, governance. So we will try to discuss in the very beginning what are the meaning of the government. So government is basically a set of peoples with certain defined roles and rules. So government is what? A set of people, or we can say a set of structures, rules, role system, and a group of people for governing a democratic country or any democratic setup, maybe a country, maybe an organization, maybe an institution. So roughly we define the government is what? A set of people who act under certain rules, under defined roles for governing a particular institution. That institution may be the country, maybe government institution, maybe private institution, maybe an industry, anything else. So government, we can define government is what? So basically it is a set of people who are bound to certain rules and they act under certain roles to provide various kinds of services to their people, to their stakeholders, I mean to say. If you are talking about a country, what are the stakeholders? The citizen of that country are the stakeholders. The businessmen of that country are the stakeholders. The industrialists are the stakeholders. The employees are the stakeholders. So the basic function of the government is to provide certain information or certain services to their stakeholders by various means. That is the government. So government, basically we define the government, how we can define the government, that is written over here, a set of structures, rules and roles and systems, and a group of people for governing a democratic country. That will be the precise definition of the government. And what is governance? Governance is the act of delivering the services or sharing the information to their stakeholders. How do they process these things? How do they deliver the services? How do they share information with their stakeholders? That is known as governance. So if precise definition is given over here, practices to facilitate the process of development and exercised through both formal and informal institutions. So I mean to say, governance is the process of delivering services to their stakeholders. Stakeholders, I have already defined you that in case of a country, the citizens, the employee, the industrialist are the stakeholders. While in case of institutions, talking about universities and colleges, the students, teachers, parents, alumni are the stakeholder. Similarly, in case of if you're talking about a business institution, a company, so for the company, the employees of the company, the customers, the vendors, the customers are, they are basically the stakeholder for business organization, I mean to say. So governance is about basically the governance, how we can define, there are three things basically. So governance is the process to share the information. How do they share information with their stakeholders? Next, how do they provide various kinds of services to their stakeholders? Say for the example, I'm taking an example of the Indian government. So Indian government provides services for issuing passport to their genuine citizens. So how do they process or how do they provide this service? That will be known as the governance. The process of providing passport services or the passport
to their citizens, to the legal citizens, is an example of governance. Similarly, all of us know that old age pensions are there, which we call Vriddha pension. So that is a facility, that is a service which is provided to the older citizen of the country. So how do the government provide this service? So that will be known as governance. So I mean to say, roughly, you can say that way the government works, or how they share the information with the citizens or means stakeholders, or how do they provide various kinds of services to their stakeholders. Collectively, this is known as the governance. So simply, governance is nothing but a process of delivering various kinds of services or information to their stakeholders. Government and governance is a very old concepts. We may go the age of monarchy, or we will find a government was there. Maybe a autocratic government was there, or maybe a democratic setup was, but the government was there and the governance was there at that time also. That is very old concept is there. Even in our democracy, we do have a government, and the function of the government is what? To provide good governance. Governance means to provide certain kind of facilities to their citizens. And how do they provide the citizen? Collectively, that is known as, that process is known as governance. Another term is there, e-governance. When we make use of ICT in the process of governance, then we simply call it e-governance. So for making the governance process more efficient, more transparent, more productive, we make use of ICT. We make use of information and communication technology in the process of governance, and simply this is known as e-governance. And by doing this thing, the whole process of governance, I mean to say, become efficient, becomes more transparent, becomes more productive, and we can have more reach, wider reach over here. It becomes easier to share the information if we are using ICT, and the process of delivering services becomes easier. And that is the whole exercise is there for what? For the welfare of a stakeholder, maybe citizen, maybe students in our case, or maybe customer in the business organization case. So in short, e-governance, how we can define the e-governance? E-governance is the use of ICT in organizations to provide efficient, transparent, and timely delivery of services to all the stakeholders, to improve work efficiency and to promote democratic values, as well as a regulatory framework that facilitates information-intensive industry and fosters the knowledge society. So precisely, we can define e-governance by this way. I mean to say, it is nothing but the process of integrating ICT into the governance process, so that the whole process becomes efficient, transparent, and productive. Here, the wider definition of this is given over here. It is application of information and communication technology, that is ICT, to the process of government functioning. I mean to say, process of governance. It depicts the utilization of technology to ease the operation and disbursement of government information. So I have already discussed these things in much detail. I am going to the next. We can say here, what is the aim of e-governance? The aim of e-governance basically is to improve the quality, cost, accessibility, and speed of delivering government information and services to their stakeholders. So it makes the government more accountable by increasing the opportunity for citizen participation in governance process. So that is both here. The aim, you can call it the aim of e-governance. E-governance is gaining considerable momentum in India, with several high-impact projects being implemented in both G2C and G2B domains across central ministries and state departments. We will discuss these parts in the latter part of the slide. Here you can see a simple governance is there. Governance means how the government acts and how the government is providing various kinds of services. We can call, and we generally call, कि governance अच्छा है या governance बुरा है. It may be good governance, maybe हम लोग अपने आम बोलचाल की भाषा में भी we use this terminology that it is a bad governance, or sometimes it is good governance. तो ठीक है. So governance may be bad governance or may be good governance. First, we'll take the example of bad governance. If it is bad governance, then by the use of e-governance, you see here, by making the use of ICT in the governance process, we can convert that bad governance into good governance.
So there are always a chance of improvement is there. So if we are having bad governance, by making use of ICT in the governance process, we can convert that process into good governance. If we are already having good governance, I have already told you that there are always a chance of improvement. Hello. There is always a chance of improvement, and participants, please confirm. Am I audible to all of you? Please confirm. Yes, sir. Okay, thank you. Okay. And if you are having the good governance, there is always a chance of improving. Further improvement is always the chance of improvement is there, or upgradation is there. So by making use of ICT in the existing governance process, we can further improve the process of governance, and that is, we can achieve better governance or good governance. The basic motto of governance is what? Governance ought to be aligned towards good governance. Good governance means happiness for all. So whatever the government is trying, they are trying to make their citizens happier. In our case, in the educational institution, we are trying to make our students more happier. We are trying to make our employees more happier. We are giving more and more facility to our employees, more and more facilities to our students, so that the stakeholders are happy. That is the main purpose of good governance. We are talking about the technology. What technology does basically, the use of technology, we are talking about ICT. The use of technology makes the whole process more efficient, easier, and productive. But we will have to make judicious use of this technology. Where we'll make use of this technology? So we can treat the technology as an enabler. That is not a panacea. ये हर मर्ज की दवा नहीं है कि हर जगह टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें. कहाँ इस्तेमाल करना है, कितना करना है, and कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, that is the process, that is the result of our judicious decision. हमें लेना पड़ेगा ये decision to make our process more efficient. Which technology I have to use, and when we have to use, and where we have to use. So all these things are part of our decision making systems. So technology can play a role of enabler. It is an enabler basically, not a panacea for all you can say sorrows. जितनी भी गम है उस सब की दवा नहीं है. हाँ, ये आपकी मुश्किलों को आसान कर सकता है. कैसे कर सकता है? We will see by taking some examples over here. Before going to that example, we will see what do we mean by G2C or G2B things are there. So they are very prominent service delivery models of e-governance. Whenever we are talking about e-governance, how do we provide services to our citizens? So say for example, if government is there and the government is trying to provide certain services to their citizens, or a business organization is trying to provide certain services to the customers, then simply it is known as G2C model, government to citizen model, or you can, in business organization, you can call it government to customer model. Governance is always there in case of government. Maybe democratic setup is there, government is there. Then what is the function of the government? To govern their citizens, to govern the country, to govern the institutions. And what is the meaning of government? What effectively they are doing over here? They are providing certain kind of information or certain kind of services to their stakeholders. In our case, our means in educational institution, who are the stakeholders? I am always making clear to you that in our case, our students, our teachers, our employees, our alumni, our parents, they are basically the stakeholder. So our basic motto in case of educational institution is to provide certain services and certain information or certain services to whom? To students, to parents, to alumni, to employees, and like that. In the case of business organization, if you're talking about governance, then in case of business organization, the main motto of the business organization is to provide certain services or certain information, or to deliver certain services to whom? To their customer, to their employee, to their vendors, and like that. They are the stakeholder in that case. In case of democratic setup, we are talking about government, central government, state government. Who are the stakeholders? The citizens are the stakeholders. The business organizations are the stakeholders. The industrialists are the. So sometimes the government is providing certain services to their citizen. Then that model is known as G2C model. Similarly, sometimes the government is providing certain services to the business. Say for example, if you want to start a big industry
or you want to start a big business. For that, you will have to apply for the license, and the government will provide you. Since the concerned government officials are there, so that office will provide you certain license or permit so that you can start that business. So here the government is providing certain services to whom? To the industrialist, to the business houses. Then it will be known, this model will be known as G2B model. Similarly, sometimes the one government office is providing certain services to other government office, then it will be known as G2G. Say for example, I'm talking about issuing a passport. So all of you know that whenever we apply for issuing a passport, we apply in the Ministry of External Affairs. That is the job of Ministry of External Affairs, to provide you the passport. But when you apply, that office, the office of the Ministry of External Affairs, contacts the nearest police station of your hometown just to know about your credentials over there, whether you are a good person or not, is there any cases or any other criminal cases pending against you, or whatever the police clearance is there. So here what is doing? Ministry of External Affairs is contacting police department. Police department comes under the Ministry of Internal Affairs. So here two government offices are there. Ministry of External Affairs is talking to Ministry of Internal Affairs in that case, and they are exchanging certain information among themselves. So this model where government office, one government office is sharing certain information or sharing different services to other government office, then it will be known as G2G model. Similarly, if the government is providing certain services to their employee, sometimes, say for example, the employees, the government is providing certain DA, dearness allowance to the employee, certain facilities to their employee. So there is another model which is known as service delivery model, you can say, that is known as G2E. So these are the preeminently dominant, you can say, service models are there. Now we will discuss some examples of innovation and technology-led transformational government stories in India. I mean to say, in the governance process where the technology has been employed. Initially, that functions was done manually. So governance was there, but it was not e-governance. When we started using, or when we started making use of ICT in that process, or when we started using technology as an enabler, we can see that many of the things has improved in the process, and the whole process is known as e-governance. ये कैसे होता है? Just to demonstrate all these things, we will take one or two examples as per the time permits. So first we will discuss passport seva. Passport seva transforming public sector services. So you see, passport seva, all of you are very much aware with that. 10 साल पहले ये passport कैसे issue होता था? All of us are very much aware with all these things. So this is basically governance process. Here the government is providing certain services to their citizens. क्या service है? They are providing, or they are issuing passports to those citizens who have applied for that. So I mean to say, यहाँ पर गवर्नमेंट एक सेवा प्रदान कर रही है, एक सर्विस प्रोवाइड कर रही है. क्या प्रोवाइड कर रही है? टू इशू द पासपोर्ट. ये पहले भी हो रहा था. कैसे हो रहा था पहले? All of us remember 10 years back, if you might have gone through the process, you'll have to go to the nearest passport office. हर डिस्ट्रिक्ट में या डिस्ट्रिक्ट के बाहर एक दो डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी नजदीक में एक पासपोर्ट ऑफिस हुआ करता था. So you will have to visit that office over there. From there you will get the proforma. वो 7-8 पन्ने का बहुत टिपिकल फॉर्म एक होता था. चलिए फॉर्म लेकर के आप घर आ गए. घर आने के बाद it takes 2 days 3 days time, आपने उस फॉर्म को फिलअप किया. And even filling up of this form was not easier. उसके लिए आपको हेल्प लेना पड़ता था किसी एजेंट के. चलिए आपने किसी एजेंट का फॉर्म हेल्प लिया एंड यू हैव फिल्ड अप द फॉर्म. यू हैव अटैच्ड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट ओवर देयर. कुछ फोटोज लगने थे, कुछ फोटोग्राफ लगाया, कुछ डॉक्यूमेंट्स लगाया आपने. And after completing all these things, again you will have to go to the passport office. You will stand in the queue. When your turn comes, then you will submit that proforma to the person sitting on the counter. That person sitting on the counter checks your proforma and finds that, okay, sir, this particular data is not there, or this particular document is missing in this form. So you please complete your form and attach that document and then resubmit it. अब आप सफर करके गए 7 किलोमीटर, वहां जाके काउंटर पे खड़े हुए, 1 घंटा टाइम लगा. उसके बाद आपसे उन्होंने कह दिया क्या कि अब इसमें एक डॉक्यूमेंट नहीं है, दोबारा डॉक्यूमेंट लगा के आप लाइए. चलिए अगेन आप रिटर्न बैक टू योर होम. फिर आप आए, घर आए, 1-2 दिन लगा आपको. फिर आपने डॉक्यूमेंट जो भी चाहिए था, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट कलेक्ट किया, एंड
After completing that form, again you visited the passport office over there, stand in the queue, wait for your turn. Whenever your turn comes, the clerk checks all these things and then this time finds that okay, your form has been submitted. आपने अपना फॉर्म वहां जमा कर दिया. जमा करने के बाद आपको एक रसीद मिल गई, रसीद लेकर के आप घर चले आते हैं. उसके बाद यू आर सिटिंग ब्लैंक कि क्या हुआ हमारे एप्लीकेशन के साथ, यू डोंट नो. चलिए, इफ यू आर वेरी फॉर्चुनेट, 2 महीने के बाद एक पुलिस वाला, जिसको कहते हैं लोकल LIU, वहां से एक आदमी आया जांच करने के लिए, भाई पुलिस वेरिफिकेशन के लिए मैं आया हूं फ्रॉम पासपोर्ट ऑफिस. ठीक है, आपने अप्लाई किया था पासपोर्ट के लिए, क्या करना है नहीं करना है. चलिए 5 मिनट 10 मिनट आपसे उन्होंने इंटरेक्ट किया, आपके बारे में जानकारी ली एंड व्हाटसोएवर इंफॉर्मेशन ही और सी कलेक्टेड, वो उन्होंने वापस फिर भेज दिया. किसको? उन्होंने पासपोर्ट ऑफिस को भेज दिया कि हाँ भाई इनका सब कुछ क्लियर है. उसके बाद आप देखते हैं कि पुलिस क्लियरेंस वहां पहुंचा. पहुंचने के बाद महीने 2 महीने 15 दिन के बाद जैसा भी हुआ, आपको पासपोर्ट इशू हो जाता था और जो पोस्टमैन है या आपके एरिया का जो भी कोरियर सर्विस वाला है, वो आपको पासपोर्ट घर पे डिलीवर करके चला जाता था. सो इट टेक्स 3 months 4 months टाइम और बड़ा ब्लैंक प्रोसेस है. हम बिल्कुल हर स्टेप से हम ट्रांसपेरेंट नहीं था. ट्रांसपेरेंट वाज नॉट देयर, मींस I am not aware of what is happening to my application, what is the status of my application, and that was not visible to me. So this was the situation 10 years or 15 years back. अब हम लोगों ने क्या किया साहब कि the government just tried to make the whole process of governance more efficient. और उन्होंने कहा कि अब हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे. देखिए, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी अब क्या हुआ कि नाउअडेज अब क्या होता है पासपोर्ट करने के लिए आपको कि यू नीड नॉट टू गो एनीवेयर. सिटिंग एट योर रूम, जस्ट यू शुड हैव ए इंटरनेट कनेक्शन ओवर हियर. आपने अपने कंप्यूटर पे पासपोर्ट सेवा खोला, आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर पे गए, इशू पासपोर्ट पे गए, एक परफॉर्मा खुल करके आ गया. सिंपली फिल अप द परफॉर्मा ओवर हियर एंड दैट परफॉर्मा इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है एंड एनफ हेल्प इज प्रोवाइडेड ओवर देयर. उसके बाद उन्होंने कहा कि यू विल हैव टू अटैच दिस डॉक्यूमेंट. उस डॉक्यूमेंट को आप सॉफ्ट कॉपी अपने सॉफ्ट कॉपी आपने क्या किया, अटैच कर दिया और अटैच करने के बाद आपने सबमिट कर दिया. व्हेन एवरीथिंग इज ओके, यू विल गेट एन इंफॉर्मेशन दैट योर परफॉर्मा फॉर और योर एप्लीकेशन फॉर issuing a passport has been successfully submitted, and immediately a number is given to you, that is the track number. Say for example, you have got 1 2 3 4 5 6 7, this is your track number. Using this track number, anytime you can track the status of your application. What happened to your application? What is the status of your application? In which stage it is there, I mean to say. तो आप देखिए कि by use of technology हो क्या रहा है, कितनी चीजें हट गई. पहले आपको जाना पड़ रहा था 60 से 70 किलोमीटर पासपोर्ट ऑफिस. एक बार नहीं, सम टाइम 2 times 3 times you will have to visit over there. You will have to stand in the queue. तो आपका टाइम का बैरियर था, डिस्टेंस का बैरियर था. इन सारे बैरियर्स को विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी आपने क्या किया, रिमूव कर दिया. एंड यू हैव मेड द होल प्रोसेस इफिशिएंट, प्रोडक्टिव. अब कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी. घर के बैठे बैठे 1 घंटे में 2 घंटे में आपने पासपोर्ट का फॉर्म भर दिया और सबमिट भी हो गया, आपको ट्रैक नंबर मिल गया. 15 साल पहले इसी काम के लिए क्या करना पड़ रहा था, यू विल हैव टू ट्रेवल 60 किलोमीटर ओवर देयर. पासपोर्ट ऑफिस जाना पड़ रहा था, वहां खड़े रहना पड़िए, फॉर्म लेकर के आइए, भरिए, फिर डॉक्यूमेंट लगाइए. समटाइम if the documents are not complete, again you are coming back to your home, again you are going over there. इन सब चीजों से आपको छुटकारा मिल गया. So that I am trying to say that it makes the whole process of governance more easier, more efficient, more productive. यानी टाइम का बैरियर खत्म हो गया. टाइम का बैरियर का मतलब आप सफर कर रहे थे, डिस्टेंस का बैरियर 60 किलोमीटर जाना पड़ रहा था, 3 दिन का खर्च हो रहा था, पैसे खर्च हो रहे थे. इन सब चीजों से आपको आसानी हो जाती है इफ वी मेक यूज ऑफ ICT इन द गवर्नेंस प्रोसेस. मैं बताना ये चाह रहा हूं कि गवर्नेंस उस वक्त भी था, पासपोर्ट 15 साल पहले भी बन रहे थे, लेकिन दैट प्रोसेस वाज टीडियस, दैट प्रोसेस वाज नॉट एफिशिएंट. बाय मेकिंग यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी वी कैन have a better system which is more efficient, more productive and more transparent. ट्रांसपेरेंसी कैसे आ गई कि अब आपके पास ट्रैक नंबर है. 10 दिन के बाद आपने देखा कि क्या स्टेटस है, पता चला कि योर एप्लीकेशन इज विद द पासपोर्ट ऑफिसर. चलिए, फिर 2 दिन के बाद देखा, अच्छा योर एप्लीकेशन हैज बीन सेंट टू योर नियरेस्ट पुलिस स्टेशन. Within a day or 2 your police station will contact you. So all the time you are seeing the status of progress of your application. So that is the beauty of e-governance. तो होता क्या है, I mean to say again, if we are coming back to the definition of e-governance जो हम लोगों ने अभी बात किया था, the whole process by making use of ICT, the whole governance process becomes more efficient. तो देखिए efficient हो गया, more transparent हो गया. ट्रांसपेरेंट का मतलब है कि हम जब भी चाहे
अपना स्टेटस देख सकते हैं कि हमारा स्टेटस क्या है, हमारा क्या है, प्रोडक्टिव हो गया सर, रीच बढ़ गई। मेनी पीपुल कैन अप्लाई फॉर द पासपोर्ट ऑफिस सिटिंग एट देयर होम डिस्टेंस या कहीं से भी। शेयरिंग इन्फॉर्मेशन बिकम ईजियर। आपके वेबसाइट पर जैसे ही आप ट्रैक नंबर देते हैं 2 मिनट के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाता है कि योर एप्लीकेशन इज राइट नाउ विद द पुलिस ऑफिसर, द पुलिस ऑफिसर विल कम फॉर पुलिस वेरिफिकेशन और फॉर पर्सनल वेरिफिकेशन टू योर होम टाउन इन दिस एंड दैट डे। एंड वंस द जिस दिन भी सब कंप्लीट हो गया प्रोसेस, आप देखिएगा कि यू विल गेट ए मैसेज इन योर मोबाइल फोन कि योर पासपोर्ट इज रेडी फॉर डिलीवर, आइदर यू कैन कलेक्ट इट और इट विल बी सेंट बाय द कोरियर। तो 2 दिन के अंदर आपका कोरियर से मिल जाएगा। सो ऑल दिस प्रोसेस बिकम्स मोर transparent and easier, I mean to say, when we make use of ICT in the governance process, and the whole process is known as e-governance. I hope that this process is very clear to you. Okay, what is the process of e-governance and how the process of governance becomes easier by implementing ICT. ये एक एग्जाम्पल सर पासपोर्ट का सभी लोग वाकिफ होंगे, इसलिए हम लोग बातचीत करें। ठीक है सर, यहाँ तक आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स सर। यहाँ तक बातें ठीक है, समझ में आ रही सर? यस सर, यस, ओके फाइन, इट इज क्वाइट क्लियर। हाँ, एक दूसरा एग्जाम्पल भी हम सभी लोग जिससे वाकिफ है, टैक्स रिटर्न हम सभी लोग भरते हैं सर। याद होगा कि आज से 5 साल 10 साल पहले चले जाइए, 10 साल पहले तो सरल नाम का एक फॉर्म आता था सर, वो फॉर्म हमको लेना पड़ता था। और अच्छा, वो फॉर्म भी थोड़ा इतना टेक्निकल था कि हम लोग खुद नहीं भरते थे, एक लॉयर को हम लोगों ने हायर कर रखा था। उनको जो भी उनकी फीस थी 500 रुपए जो भी सालाना या 1000 रुपए दिया करते थे, वो फॉर्म भर दिया करते थे। फॉर्म को भर के फिर जा करके मैनुअली वो जो अपने डिस्ट्रिक्ट का वो टैक्स का इनकम टैक्स का ऑफिस होता है, वहां जाकर के वो जमा करते थे। फिर थोड़े दिन के बाद हमें वो एक कागज मिलता था जिसमें लिखा रहता था कि आपका टैक्स रिटर्न ये है। फिर वकील साहब या वो जो हमारे लॉयर थे, टैक्स लॉयर जो भी इनकम टैक्स लॉयर, वो ला करके हमें देते थे। दिस वाज द प्रोसेस सर, अगर सभी लोगों को याद हो, 10 साल की पुरानी बात, ज्यादा नहीं। अब हमें कहीं आने जाने की जरूरत नहीं सर, अब हमें ऑनलाइन वो फॉर्म अवेलेबल है टैक्स रिटर्न फिलअप करने का। वहां पर आप अपनी कितनी आमदनी है, क्या खर्चा है, 4-5 कॉलम होते हैं, बहुत इजी टू फिल है सर। वहां से भरिए, सबमिट कीजिए, 1-2 डॉक्यूमेंट लगाने हैं लगाइए और हो गया। और विद इन ए वीक टाइम आपको आपके पास आपका टैक्स रिटर्न भर के मिल जाएगा कि सर आपने ये टैक्स रिटर्न भरा था, ये आपका रिटर्न, आपने ज्यादा पैसा जमा कर दिया, ज्यादा कटवा दिया है, ये आपका रिटर्न है जो कि चेक नंबर दिस एंड दिस से है, यू कैन कलेक्ट इट और इट विल बी ट्रांसफर टू योर बैंक अकाउंट डायरेक्टली फ्रॉम देयर। सो द होल प्रोसेस बिकम्स वेरी इजियर बाय द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो हम, आई मीन टू से कि गवर्नेंस पहले भी था, हम पहले भी इनकम टैक्स कर रहे थे, फॉर्म भर रहे थे, गवर्नमेंट ये फैसिलिटी हमको प्रोवाइड कर रही थी, लेकिन दैट वाज नॉट मोर इफिशिएंट, वो बहुत आसान नहीं था। बाय द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसको हम लोग कहते हैं ई गवर्नेंस, जब से आया तब से ये सारे प्रोसेस क्या हो गए सर हमारे लिए, इजी हो गए, इफिशिएंट हो गए, प्रोडक्टिव हो गए। इन्होंने टाइम बचाया, पैसा बचाया, वक्त बचाया। तो ये सब चीजें, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दैट टेक्नोलॉजी इज इनेबलर, इट इज एन इनेबलर व्हिच फैसिलिटेट्स यू, इट प्रोवाइड्स ए फैसिलिटी, आई मीन टू से। लेकिन इसका इस्तेमाल कहाँ करना है, कैसे करना है अपने प्रोसेस में, ये हम लोग अभी देखेंगे सर। तो यहां तक हम लोग कन्विंस हैं कि ठीक है सर, गवर्नेंस के प्रोसेस में अगर आप आईसीटी का इस्तेमाल करेंगे तो सर्टेनली द होल प्रोसेस बिकम्स मोर प्रोडक्टिव, मोर इजियर, मोर ट्रांसपेरेंट। बहुत अच्छी बात है। और इजिली यू कैन डिसेमिनेट द इंफॉर्मेशन टू वेरियस स्टेक होल्डर्स और यू कैन प्रोवाइड सर्विसेज टू द स्टेक होल्डर। जैसे कि अभी हमने देखा, ये सर्विसेज, दीज आर द सर्विसेज बेसिकली, issuing a passport or allowing you the facility to fill up your tax returns and like that. So these are the facilities which are being provided by the government. हम लोग अपने केस में जब बात करें, अपने केस का मतलब हम लोग वी आर मोर कंसर्न्ड अबाउट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो हम लोग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अभी भी गवर्न करते हैं। गवर्न करने का मतलब है हमारे गवर्निंग बॉडी कौन होती है, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द यूनिवर्सिटी, इन केस ऑफ यूनिवर्सिटी द वाइस चांसलर इज देयर, प्रो वाइस चांसलर इज देयर, रजिस्ट्रार इज देयर, डीन इज देयर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स आर देयर। सो दे फॉर्म बेसिकली द गवर्नमेंट। सो दे आर इन डिफरेंट रोल्स। देखिएगा सर, हमने आपको शुरू में बात किया था कि डिफरेंट पीपल आर देयर, सो सेट ऑफ पीपल आर देयर विद वेरियस रोल्स एंड दे आर बाउंड बाय सर्टेन रूल्स। और अकॉर्डिंगली उस रूल के तहत ये लोग क्या करते हैं, दे प्रोवाइड, दे एक सर्टेन, दे गवर्न द इंस्टीट्यूशन। गवर्न द इंस्टीट्यूशन मींस व्हाट, दे आर प्रोवाइड, ये राज नहीं कर रहे हैं उस इंस्टीट्यूशन पे। गवर्निंग का मतलब है कि दे आर प्रोवाइडिंग सर्टेन काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन टू द स्टेकहोल्डर्स, दे आर ट्राइंग टू प्रोवाइड सर्टेन काइंड ऑफ सर्विसेज टू देयर स्टेकहोल्डर्स। और ये कैसे प्रोवाइड करेंगे सर्विस, कैसे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, दैट इज बीइंग डिसाइडेड बाय दैट गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मींस ए सेट ऑफ पीपल जो भी उस। इन केस ऑफ कॉलेज सर, हम लोग कॉलेज की अगर बात करें तो वहां भी गवर्न करते हैं। तो कौन होता है, प्रिंसिपल साहब हैं, वाइस प्रिंसिपल हैं, प्रॉक्टर हैं, डीन्स हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स हैं। इन लोगों की एक बॉडी है जो कि गवर्निंग बॉडी कहलाती है। ये गवर्नमेंट है बेसिकली। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दैट, इनका फंक्शन ये है कि
कॉलेज का काम ठीक से चले। तो कॉलेज का काम क्या है भाई, अपने जो स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, एलुमनाइज हैं, एम्प्लॉयज हैं, इनको डिजायर्ड सर्विसेज ठीक से मिलनी चाहिए। अब वो डिजायर्ड सर्विसेज कैसे मिलेंगी, दैट इज डिसाइडेड बाय द गवर्निंग बॉडी। तो हम लोग सर आप थोड़ा सा आते हैं अपने ई गवर्नेंस सिस्टम इन यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं हम लोग, कि अपने यूनिवर्सिटीज में या कॉलेजेस में या हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में गवर्नेंस का क्या मतलब है। तो क्लियर है सर कि हम लोग भी अपने इंस्टीट्यूट में गवर्निंग बॉडी होती है हमारी, हम भी गवर्न करते हैं अपने इंस्टीट्यूट को, है ना, थ्रू सर्टेन सेटअप। सेटअप अलग अलग हो सकता है, यूनिवर्सिटी में गवर्निंग सेटअप अलग हो सकता है। जैसे आप गवर्नमेंट की बात करें तो वहाँ मुख्यमंत्री है, तो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, ये सब हैं, या प्रधानमंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, वेरियस मिनिस्टर्स हैं, टेकन टुगेदर दे फॉर्म द गवर्नमेंट। हियर इन केस ऑफ our case means we are talking about educational institution, यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज में भी हम गवर्न करते हैं, अपने कॉलेज को भी गवर्न करते हैं, यूनिवर्सिटी को भी गवर्न करते हैं, वहां भी गवर्निंग बॉडी है। तो अगर उस प्रोसेस को हम थोड़ा, जो गवर्नेंस का प्रोसेस है वहां पर इफ वी मेक judicious use of ICT, then we can make the whole process of governance more efficient, more productive and more transparent. कैसे कर सकते हैं सर ये सब हम लोग, that is the topic of discussion which we will follow from here onwards. So you see here, introducing e-governance in universities or colleges can bring transparency, can make the whole process economical, can enhance or can increase the accessibility of the system, and will make the whole process more efficient in case of higher education. So it can bring transparency, economy, accessibility and efficiency in higher education. ये सभी लोग हम लोग एग्री करते हैं सर, इससे हम लोग एग्री करते हैं या नहीं सर, कि अगर हम लोग अपने इंस्टीट्यूशन में भी आईसीटी का इस्तेमाल करें गवर्निंग प्रोसेस में, यानी गवर्नेंस में, I mean to say, if we try to implement e-governance in our university, the whole process will become more transparent, more economical, more accessible, and more efficient. Do you agree with this statement, sir? Yes, sir. Okay. Yes. अब ये सारी बातें जो भी हम आपसे डिस्कस कर रहे थे वो सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, कैसे है हम लोग देखेंगे। अच्छा, ये सर जो एनईपी डॉक्यूमेंट हमारा, दैट आल्सो टॉक्स अबाउट गुड गवर्नेंस और ई गवर्नेंस, है ना। So NAP 2020 talks about good governance, identify various related activities and mechanism to govern educational institution and schools basically, and higher education to achieve the goals of 21st century education. तो ये भी कह रही है कि हाँ, there are certain sectors, बहुत सी जगह हैं जहां पर आप ई गवर्नेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, so that the whole process means here we are talking about educational process, administration process becomes more transparent and more efficient and more productive. अच्छा ठीक है सर, यहाँ तक एग्री करते हैं कि हाँ सर, अगर हम लोग अपने यूनिवर्सिटीज में या कॉलेज में आईसीटी का इस्तेमाल करें गवर्नेंस प्रोसेस में या गवर्न करने के लिए, देन द होल प्रोसेस विल बिकम एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट एंड प्रोडक्टिव। कैसे, तो ऐसा होता भी है या नहीं होता है, थोड़ा सा ऐसा जानने के लिए देयर हैज बीन अ स्टडी, सेवरल स्टडीज आर देयर, और इस स्टडी में देखा गया कि बहुत सारे कॉलेज और बहुत सारे हायर इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटीज, जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज भी थे, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में कॉलेजेस भी थे, इनका अध्ययन किया गया। और अध्ययन करके क्या पाया गया, दैट समरी आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्कस विथ यू सो दैट इट बिकम्स वेरी क्लियर टू यू। होता है ना कि हम पहले अप्लाई करना चाहते हैं, तो अप्लाई करने से पहले हम देखना चाहते हैं कि भाई दूसरों ने जो अप्लाई किया उसका क्या हुआ, उनको कितनी सफलता मिली, हमको लगा कि हाँ साहब ऐसा करने से फायदा होता है, देन ओनली वी विल डिसाइड कि चलिए साहब हमको भी करना चाहिए। सो व्हाट इज द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ ई गवर्नेंस इन इंडियन यूनिवर्सिटी, फर्स्ट वी विल सी दैट थिंग। there are certain slides, I hope my slide is visible to all of you, आप देखिएगा इसको सर। The first question was that whether the university have got well defined policy for e-governance or not. सबसे पहले सर देखिए क्या होता है कि whenever you decide, आप अपने कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में डिसाइड करते हैं कि हमें e-governance इंप्लीमेंट करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर दैट यू विल हैव टू हैव अ डिफाइंड पॉलिसी। पॉलिसी का मतलब क्या है, एकदम क्लियरली डिफाइन करना पड़ेगा कि देखिए दीज आर द प्रोसेस, कौन कौन से प्रोसेस हैं पहले। जैसे सर एग्जाम्पल के लिए मैं ले रहा हूँ, यूनिवर्सिटी सिस्टम में क्या है, एग्जामिनेशन प्रोसेस एक प्रोसेस का नाम है, एडमिशन प्रोसेस एक प्रोसेस है, हायरिंग प्रोसेस और रिक्रूटमेंट प्रोसेस, हॉस्टल मैनेजमेंट प्रोसेस, लाइब्रेरी मैनेजमेंट प्रोसेस, तो बहुत से प्रोसेस है सर। तो इसमें आपको डिसाइड करना पड़ेगा, प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि आप कौन कौन से सेक्टर को कब ऑटोमेट करना चाहते हैं, किस सेक्टर में पहले आप ई गवर्नेंस या आईसीटी का इस्तेमाल करना चाहते हैं, सो दैट द बिग प्रोसेस, द होल प्रोसेस बिकम्स मोर एफिशिएंट। तो आपने डिसाइड किया, आपने पॉलिसी बनाई कि सबसे पहले हम, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ योर इंस्टीट्यूशन, कि हम एडमिशन प्रोसेस को क्या करेंगे सर, ऑटोमेट करेंगे, ई गवर्नेंस करेंगे पहले। जब एडमिशन हमारा हो जाएगा
तब हम एग्जामिनेशन प्रोसेस को करेंगे सर। एग्जामिनेशन प्रोसेस हो जाएगा तो फिर हम फाइनेंस डिपार्टमेंट को अपना ई गवर्नेंस सिस्टम लाएंगे। ई गवर्नेंस का मतलब वहां पर हम आईसीटी का इस्तेमाल करेंगे एंड विल मेक द होल प्रोसेस मोर एफिशिएंट और मोर ट्रांसपेरेंट। ठीक है सर। उसके बाद हमने तय किया कि हम रिक्रूटमेंट प्रोसेस को करेंगे। उसके बाद हम सर आगे चलेंगे, फिर लाइब्रेरी को ऑटोमेट करेंगे, फिर हम हॉस्टल्स को ऑटोमेट करेंगे एंड सो। सो यू शुड हैव अ डिफाइंड पॉलिसी फॉर दैट। होता क्या है कि गवर्नमेंट बदलती रहती है सर। तो मान लीजिए कि अभी की गवर्निंग बॉडी बहुत टेक्नो सेवी है और उसने बहुत काम किया और एक दो प्रोसेस को क्या किया उसने ऑटोमेट कर दिया। ऑटोमेट करने का मतलब वहां आईसीटी का इस्तेमाल कर करके ई गवर्निंग कर दिया। उसके बाद सर गवर्नमेंट चेंज कर गई, अगले बार प्रिंसिपल चेंज कर गया या वाइस चांसलर चेंज कर गया या कुछ भी हुआ। चेंज करने के बाद अब दूसरा जो सेटअप आया दैट वाज नॉट दैट मच टेक्नो सेवी, वो बहुत टेक्नो सेवी नहीं था। उस केस में उनका इंटरेस्ट भी नहीं था कि हमको ये काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए। पता चला कि उनका इंटरेस्ट किसी और सेट में है, नहीं बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाओ, ये करो, बहुत हॉल बनाओ, हॉस्टल बनाओ, उधर उनका काम चलने लगा दिन भर। उन्होंने ई गवर्नेंस पे जोर नहीं दिया, तो जो काम जहां तक हुआ था वहीं तक रुक गई, आगे अब नहीं हुआ। फिर अगला गवर्नमेंट आएगा, क्या होगा नहीं। बट इफ यू हैव अ डिफाइंड पॉलिसी, तो पॉलिसी डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है तो नो मैटर विच गवर्नमेंट इज देयर, वो देखती है आने वाली गवर्नमेंट, अच्छा इसमें इतना काम हो चुका है, अब आगे ये काम होना है, तो स्लो या फास्टर रेट में वो काम आगे बढ़ता जरूर है। It is necessary that whenever we decide that we have to implement e-governance system in our university, first of all, we will have to have a clearly defined policy for that. Is it clear, sir? Yes, sir. Yes, sir. जो रिजल्ट्स की फाइंडिंग है वो यहाँ लिखी हुई है, मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, आप लोग इतने देर में पढ़ भी लीजिएगा कि क्या लिखा। इसमें लिखा हुआ था स्टडी में ये पाया गया कि नन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हैव गॉट वेल डिफाइंड पॉलिसी फॉर ई गवर्नेंस। अगर ई गवर्नेंस की वेल डिफाइंड पॉलिसी नहीं है तब उस केस में सर क्या होगा। ठीक है, प्रेजेंट गवर्नमेंट या प्रेजेंट सेटअप या प्रेजेंट डिस्पेंसेशन से क्या कर रहा है कि बहुत इंटरेस्टेड है, उसने कुछ काम तो कर दिया, लेकिन जब वो चेंज हो गया तो अगले, अब आपके पास कोई पॉलिसी थी नहीं, आने वाले को कुछ पता ही नहीं कि कितना काम हुआ कितना काम नहीं हुआ या आगे क्या होना है, कोई क्लियर कट पॉलिसी नहीं है, तो काम वहीं रुक जाएगा सर, स्लो हो जाएगा, है ना। तो ये सब चीजें पाई गई, तो एक क्लियर कट पॉलिसी होनी चाहिए। दूसरा सर, चलिए आपने पॉलिसी डिफाइन कर लिया। आप पॉलिसी डिफाइन करने के बाद सबसे बड़ी बात होती है कि वेदर यूनिवर्सिटी हैव गॉट ई गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्लेस और नॉट। आपको लगता है कि हाँ, ये इससे किसको इनकार है कि हमारा एडमिशन सिस्टम कंप्यूटराइज हो जाए, हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम कंप्यूटराइज हो जाए, हमारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्यूटराइज, हमारा फाइनेंस सिस्टम कंप्यूटराइज, इससे किसको इनकार है, सब लोग चाहते हैं। लेकिन सर सिर्फ पॉलिसी बनाने से नहीं होगा, अब देखना पड़ेगा कि ठीक है आपने पॉलिसी तो बना ली, लेकिन इस चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, कुछ रिक्वायरमेंट्स है हमारी, वो है आपके पास या नहीं है। क्या रिक्वायरमेंट होती है सर, देखा जाता है तो सबसे पहले देखना चाहिए कि आपके पास रिक्वायर्ड हार्डवेयर है या नहीं। अगर कंप्यूटर की बात कर रहे हैं तो हार्डवेयर होना चाहिए, उससे रिलेटेड जो प्रोग्राम्स हैं, सॉफ्टवेयर हैं, वो हैं कि नहीं, सॉफ्टवेयर हैं कि नहीं, ब्रॉडबैंड की कनेक्टिविटी है कि नहीं, इंटरनेट की कनेक्टिविटी मस्ट है इस केस में, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई है कि नहीं। वेरी फार अपार्ट जो कॉलेजेस है सर, वहां पर पता चला कि दिन के 8 घंटे लाइट ही नहीं आ रही, तो आपके पास सब कुछ है, हार्डवेयर भी है, सॉफ्टवेयर भी है और इंटरनेट की कनेक्टिविटी है, लेकिन पावर सप्लाई नहीं है। तो पावर सप्लाई नहीं है तो फिर आप सर्विस प्रोवाइड ऑनलाइन मोड में नहीं कर पाएंगे। तो फिर क्या होना चाहिए सर, एक अल्टरनेट सोर्स ऑफ सप्लाई होना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी का, दैट मे बी इन द फॉर्म ऑफ जनरेटर और दैट मे बी इन द फॉर्म ऑफ अनइंटरप्टेड यूपीएस, जिसको हम लोग कहते हैं अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई सिस्टम होना चाहिए। चलिए सर ये भी हो गया। एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स यू विल हैव टू हैव द ट्रेन्ड मैन पावर, जो कि आपके टेक्नोलॉजी ड्रिवन जो सिस्टम है उसको चला सके, उसका देखरेख कर सके, उसको मेंटेन कर सके। अगर ट्रेन मैन पावर नहीं है, आपके पास बहुत अच्छा हार्डवेयर है, बहुत ज्यादा सॉफ्टवेयर है, नेटवर्क की कनेक्टिविटी भी है, यूपीएस भी है, लेकिन if you face certain kind of difficulty, there are nobody available to fix up that technical problem, तब आपको दिक्कत हो जाएगी। तो क्या होना चाहिए सर, ट्रेन मैन पावर भी, ये इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं। अगर इतना है तब जो आपने पॉलिसी बनाई है रिगार्डिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई गवर्नेंस, उसको आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अच्छा, फाइंडिंग्स क्या थी सर, तो यहाँ पर फाइंडिंग्स में देखिए लिखा हुआ था, नन ऑफ द यूनिवर्सिटी हैव गॉट द एंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर नीडेड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई गवर्नेंस। तो देखा गया कि किसी के पास भी पूरा नहीं था, किसी के पास हार्डवेयर है तो सॉफ्टवेयर नहीं है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है, नेटवर्क है तो इंटरनेट का सप्लाई नहीं है, इंटरनेट है तो यूपीएस नहीं है, एंड सो सब कुछ भी है तो ट्रेन मैन पावर नहीं है। तो अगर ये सारी चीजें जो अभी हमने बताई, जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी यानी इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड यूपीएस मींस अल्टरनेट सोर्स ऑफ पावर सप्लाई एंड ट्रेन मैन पावर, ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट सर देखा गया क्या, आप लोग सर स्लाइड पढ़ते भी रहिएगा, जरा हम बात भी कर रहे हैं।
Next is whether university are disclosing all non-confidential information to promote transparency by securing private and confidential information. देखिए सर, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। अभी हम लोगों ने डेफिनेशन में देखा था कि ई गवर्नेंस मेक्स द होल प्रोसेस इफिशिएंट, प्रोडक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब है कोई ढकी छुपी बात नहीं होना चाहिए। सेफ एग्जांपल हम लोग लेना चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी के पास बहुत से वैसे इंफॉर्मेशन होते हैं जो कॉन्फिडेंशियल होते हैं। चलिए साहब, जो कॉन्फिडेंशियल नेचर के हैं उसको आप पब्लिक मत करिए, उसको पब्लिकली शेयर मत करिए, लेकिन जो नॉन कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है जिसमें कोई खास बात नहीं है उसको आप क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और शेयर करना भी चाहिए। यही मकसद है। व्हाट इज द मकसद ऑफ व्हाट द पर्पस ऑफ ई गवर्नेंस? टू शेयर इंफॉर्मेशन विद द स्टेक होल्डर्स। तो यहां देखिएगा सर कि पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, all the universities are hiding lot of information which is actually to be revealed। इसमें कुछ सीक्रेट नहीं था। जैसे एक एग्जांपल यहां पर दिया गया है, everyone should know the audited accounts but the university failed to display such information। भाई ऑडिटेड अकाउंट में तो कुछ नहीं था, ऑडिट हो चुका। ऑडिट का मतलब कितना आपका साल का आमदनी था और किस किस मद में, यानी मद का मतलब किस किस हेड में कितना कितना पैसा आपने खर्च किया, ये अकाउंट है। और इसको आपको पब्लिकली डिस्प्ले करने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए, लेकिन यूनिवर्सिटी इसको डिस्प्ले नहीं करना चाहती है। अब नहीं करना चाहते हैं अगर आप, तो देन यू आर किलिंग द स्पिरिट ऑफ ई गवर्नेंस। गवर्नेंस का स्पिरिट ही यही है कि टू मेक द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन पब्लिक, टू शेयर द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन विद वेरियस स्टेक होल्डर्स। तो इसी तरह से देखिएगा सर, बहुत से डीम्ड यूनिवर्सिटी के केस में ये पाया गया स्टडीज में कि हैव मेड बिगिनिंग इन रिवीलिंग पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन बट दे आर आल्सो इनकम्प्लीट। कुछ लोग कुछ पार्ट इंफॉर्मेशन का दे रहे हैं, पूरा इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, है ना। तो ये सब सारी चीजें थी। नेक्स्ट क्या है सर, whether university have automated their academic functions like admission, attendance, examination, result, placement and post course services। ये भी हम लोगों ने बात किया था सर कि whenever you want to implement e-governance you will have to identify the process। तो कौन कौन सा प्रोसेस है जिसको आप ऑटोमेट करना चाहते हैं, यानी कहने का मतलब वहां ई गवर्नेंस इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। तो जैसे हमने लिखा सर, एडमिशन का प्रोसेस हो सकता है, अटेंडेंस का प्रोसेस हो सकता है, एग्जामिनेशन का प्रोसेस हो सकता है, रिजल्ट प्रोसेसिंग का प्रोसेस हो सकता है, प्लेसमेंट का प्रोसेस हो सकता है। देयर आर वेरियस प्रोसेसेस जिसको आपको आइडेंटिफाई करना होगा एंड यू विल हैव टू प्रायोरिटाइज। एक ही साथ सबको नहीं कर सकते हैं, एक एक करके हम क्या करेंगे सर, इसको ग्रेजुअली स्टेप वाइज वी विल इंप्लीमेंट ई गवर्नेंस सिस्टम। तो देखा गया सर यहाँ जो स्टडी में पाया गया कि डीम्ड यूनिवर्सिटी हैव ऑटोमेटेड मोस्ट ऑफ द एकेडमिक फंक्शंस बट नॉट फुल्ली। फॉर एग्जांपल नन ऑफ देम हैव ऑटोमेटेड पोस्ट कोर्स सर्विसेज। पोस्ट कोर्स सर्विसेज का मतलब है एक लड़का अगर कोर्स कंप्लीट कर लेता है तो उसके बाद उसको सहायता देना है आपको, बिकॉज ही हैज बिकम योर एलुमनाई। तो एलुमनाई को जो सहायता देना है करना है वो सर्विसेज नहीं थी। इसी तरह से बहुत सी यूनिवर्सिटी में पाया गया कि उन्होंने एडमिशन सिस्टम को तो कर लिया ऑटोमेट, लेकिन एग्जामिनेशन सिस्टम उनका ऑटोमेट नहीं है। किसी का एग्जामिनेशन ऑटोमेटेड है तो रिजल्ट प्रोसेसिंग सिस्टम ऑटोमेटेड नहीं है, किसी का प्लेसमेंट सिस्टम नहीं है, किसी की लाइब्रेरी ऑटोमेट नहीं है। सो दे आर पार्शियली, दे हैव इंप्लीमेंटेड इट पार्शियली, आई मीन टू से। अगला क्वेश्चन देखा गया सर, वेदर यूनिवर्सिटी हैव ऑटोमेटेड द स्टूडेंट फैसिलिटीज लाइक लाइब्रेरी। जैसे हमने कहा लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, क्या आपने अपने लाइब्रेरी को ऑटोमेट किया है कि नहीं, अपने हॉस्टल्स की जो फैसिलिटीज है उसको ऑटोमेट किया है या नहीं, हॉस्पिटल की फैसिलिटी जो स्टूडेंट्स के लिए दैट हैज बीन ऑटोमेटेड और नॉट, क्लब, ऑडिटोरियम एटसेट्रा फॉर एक्सेस एंड यूज। तो यहाँ देखा गया क्या सर, मेनी ऑफ द यूनिवर्सिटी हैव ऑटोमेटेड फैसिलिटीज लाइक लाइब्रेरी, हॉस्टल एंड क्लब। बाकी को नहीं किया उन्होंने, ऑडिटोरियम को नहीं किया है, और भी फैसिलिटीज है हॉस्पिटल को नहीं किया है, लाइक दैट। तो यू विल हैव टू सी कि जो भी प्रोसेस है हमारे पास उन सबको हम स्टेप वाइज, एक साथ नहीं, इन स्टेज मैनर, धीरे धीरे करके हम क्या करें सर, एक एक करके ऑटोमेट करें। Whether the university have automated their administrative functions like HR का जैसे हम लोगों ने बात किया था, रिक्रूटमेंट फंक्शन है या फाइनेंस एंड वेंडर मैनेजमेंट है, इन सब को किया है कि नहीं। So I mean to say these are various processes, various functions which need to be automated in a stepwise manner, in a staged manner, I mean to say, one by one. The finding of the studies given in the blue color text, which you can read through it. Another thing is that whether university have got well-defined policy for use of social media by stakeholders. I have already told you that one of the purpose of e-governance is to share information with the stakeholders. तो पहले जो सर in older time you can say हम लोग के पास वेबसाइट था जिसके थ्रू हम क्या करते थे, स्टेक होल्डर तक हम इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन हमें देना है वी पब्लिश ऑन आवर वेबसाइट and the address of the website is given to the stakeholders. So whenever they will visit my website or university's website, they can find the relevant information from here. ये तो एक
इंफॉर्मेशन डिसिमिनेट करने का एक पुराना तरीका था। अब हम लोग अब देयर आर सेवरल वेज and social media is playing great role in disseminating information to their stakeholders. तो अब आपके पास पॉलिसी है या नहीं? Many colleges have the policy that okay, you can use Facebook, we can use Twitter, and several social media platforms are there जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं for spreading information amongst the stakeholders. Stakeholder means student तक, alumni तक, parents तक अपनी बात पहुंचाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बहुत सी यूनिवर्सिटी ऐसे हैं जहां पर ये पॉलिसी डिफाइंड नहीं है कि नहीं साहब आप अभी सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर समवॉट कहने का मतलब सस्पिशियस है कि वो भाई हम लोग डरे हुए भी हैं, थोड़ा कंफ्यूज्ड भी हैं कि वेदर सम पीपल कैन मेक यू कैन से मैलिशियस यूज ऑफ ऑल दीस थिंग्स, तो हमको सोशल मीडिया का यूज नहीं करना है। ठीक है, कितना करना है नहीं करना है, किसी एक फैसिलिटी है, इसका मतलब है कि उसका अबंडेंस में यूज नहीं करना है, जुडिशियस यूज करना है। तो उसके लिए एक पॉलिसी होनी चाहिए कि ठीक है हम इस काम के लिए, जैसे एडमिशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, दैट वी विल फ्लोट ऑन सोशल मीडिया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग तक एडमिशन का पहुंच सके। हमने रिजल्ट जब पब्लिक किया तो हम रिजल्ट को भी क्या करेंगे, सोशल मीडिया के थ्रू कोशिश करेंगे कि स्टेक होल्डर्स तक ज्यादा से ज्यादा पहुंच सके। सो दैट नीड्स टू क्लियरली डिफाइन ए पॉलिसी। तो एक पॉलिसी आपके पास होना चाहिए फॉर यूजिंग सोशल मीडिया फॉर डिसेमिनेटिंग इंफॉर्मेशन टू द स्टेक होल्डर्स। अच्छा सर, ये समरी तो है, समरी हम लोग देखते हैं सर, जितनी बातें हम लोगों ने की वही बात है। अब डिपेंडिंग ऑन दैट जो भी हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन किया उसके आधार पर कुछ सजेशंस दिए गए हैं कि कैसे आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो दीज आर सर्टेन सजेशंस ओवर हियर। अच्छा सर, अब आइए, सब कुछ जानने के बाद हमको ऐसा लगा कि नहीं साहब सब तो ठीक है, हम समझ गए सर कि गवर्नेंस क्या होता है और अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में हम लोग इसको इंप्लीमेंट करेंगे तो इसके क्या फायदे हैं, बाकी यूनिवर्सिटीज ने कितना किया है कितना नहीं किया ये भी हम लोगों ने देख लिया। अब इतना जानने के बाद हम लोग चाहते हैं कि वी विश टू इम्प्लीमेंट ई गवर्नेंस सिस्टम इन आवर यूनिवर्सिटी। हम अब अपने यूनिवर्सिटी में इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। उसके लिए सर क्या करना पड़ेगा जरा ये बताइए। तो सर देखिए, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमने आपको बताया, टू बिगिन विथ higher educational institute means your college and university must identify some of the below listed generic functionalities related to e-governance system। कहने का मतलब है कि what do you want to govern, identify the process or activities to be governed। ये हमने अभी शुरू में बताया कि आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन कौन से प्रोसेस हैं जिसको आप ऑटोमेट करना चाहते हैं या जहां आप आईसीटी का इस्तेमाल करना चाहते हैं फॉर बेटर गवर्नेंस। ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो पहला फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टास्क इज दैट you will have to identify, क्या आइडेंटिफाई करना पड़ेगा सर, what do you want to govern, I mean to say identify the process or activities to be governed। कि आप एडमिशन प्रोसेस को करना चाहते हैं, कि एग्जामिनेशन प्रोसेस को करना चाहते हैं, कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस को करना चाहते हैं या फाइनेंशियल प्रोसेस को करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि दीज आर द प्रोसेसेस हम जहां पर आईसीटी का इस्तेमाल करना चाहते हैं फॉर बेटर गवर्नेंस। तो ठीक है सर, तो बोलिएगा आप क्या, ठीक है आपने आइडेंटिफाई कर लिया पहला। तो अब देखिए सर इसको करते कैसे हैं, ई गवर्नेंस का जब इंप्लीमेंटेशन होता है तो हमने आपको बताया स्टेप वाइज होता है। तो सबसे पहला काम होता है इंफॉर्मेशन शेयरिंग थ्रू वेबसाइट डिस्प्लेइंग स्टैटिक इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए एडमिशन, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं बिकॉज ऑल ऑफ अस आर वेरी मच अवेयर विद एडमिशन प्रोसेस। तो एडमिशन प्रोसेस में क्या करना है सर, हम अपने वेबसाइट पर कर देते हैं कि भाई देखिए एडमिशन प्रोसेस जो है फॉर द सेशन 24-25 जो है विल स्टार्ट फ्रॉम सिर्फ एग्जाम जून में फॉर्म्स विल बी अवेलेबल। आप फॉर्म्स ले सकते हैं, यू कैन फिल अप द फॉर्म फॉर वेरियस कोर्सेज, अप्लाई इट बाय द एंड ऑफ जुलाई। आपका जुलाई तक एडमिशन आ जाना चाहिए और ये कोर्सेज हमारे पास हैं, ये उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये एग्जामिनेशन फीस है, ये एडमिशन फीस है, जो भी आपका ये एडमिशन का प्रोसेस है ये सारे प्रोसेस आप डिस्प्ले कर सकते हैं कहां पर, अपने वेबसाइट पे, सो दैट एनीबडी हु इज इंटरेस्टेड इन टेकिंग एडमिशन इन योर यूनिवर्सिटी दैट विल विजिट टू योर वेबसाइट एंड कैन गेट दैट मच इंफॉर्मेशन फ्रॉम देयर। सो दैट इज नोन एज इंफॉर्मेशन शेयरिंग थ्रू वेबसाइट डिस्प्लेइंग स्टैटिक इंफॉर्मेशन। हमने याद होगा कि जब भी हम लोगों ने अभी डिस्कशन शुरू किया था तो आपको बताया था ई गवर्नेंस इज द प्रोसेस ऑफ व्हाट, शेयरिंग इंफॉर्मेशन विथ योर स्टेक होल्डर्स। तो देखिए यहाँ पर आप स्टेक होल्डर के साथ क्या कर रहे हैं सर, इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं हम लोग, उसको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है, आपके वेबसाइट पे वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। चलिए नेक्स्ट, अब नेक्स्ट स्टेज की बात हम लोग कर रहे हैं। अभी तो स्टैटिक इंफॉर्मेशन था, वहां पर उसने देख लिया, अब उसको फॉर्म लेने के लिए आपके कॉलेज आना पड़ेगा। अभी कॉलेज आएगा, वहां से 5 रुपए 10 रुपए जो भी होगा 50 रुपए में फॉर्म मिलेगा, फॉर्म लेके घर जाएगा, भरेगा, ला करके वहां जमा करेगा, फोटो लगाएगा, डॉक्यूमेंट लगाएगा, जमा कर देगा, ठीक प्रोसेस होगा एंड उसको फिर एडमिशन मिलेगा, नहीं मिलेगा आप लिस्ट लगा देंगे, दैट लिस्ट विल बी आल्सो डिस्प्लेड ऑन योर वेबसाइट। अब थोड़ा सा बोलिए सर हम
और आसानी और इफिशियंट बनाना चाहते हैं इस प्रोसेस को, तो अब क्या करेंगे सर कि फॉर्म लेने के लिए स्टूडेंट को जो है आप मत बुलाइए अपने काउंटर, ऑनलाइन फॉर्म उसको प्रोवाइड कर दीजिए कि वहीं से फॉर्म डाउनलोड कर ले, वहीं से फॉर्म भर दे और वहीं सबमिट कर दे। क्या कर सकता है सर? सो नेक्स्ट स्टेज क्या है हमारा, देखिएगा, प्रोवाइडिंग स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स मीन अभी हम लोग स्टूडेंट की बात कर रहे हैं। स्टेक होल्डर्स इंफॉर्मेशन ऑन डिमांड लाइक इंडिविजुअल स्टूडेंट रिजल्ट। अगर कोई रिजल्ट मांग रहा है कि हमें सर रिजल्ट चाहिए, ठीक है, आप उसको रिजल्ट भेज दीजिए। मार्कशीट किसी को चाहिए, मार्कशीट भेज दीजिए। एक एम्प्लॉय आपका पे स्लिप चाह रहा है तो उनको पे स्लिप भेज दीजिए। कोई आदमी सिलेबस देखना चाह रहा है किसी कोर्स का, उसने बोला कि हमको फला कोर्स का सिलेबस, ठीक, मेल पे सिलेबस है, हमने आपको मेल से भेज दिया। तो ये सर सेकंड लेवल है। थर्ड लेवल ऑफ इंप्लीमेंटेशन में क्या होता है, यू आर मेकिंग योर वेबसाइट मोर इंटरेक्टिव फ्रॉम बोथ साइड्स। तो देखिए, जैसे आप हम एग्जांपल ले रहे थे फॉर्म भरने का, तो अब फॉर्म का हार्ड कॉपी काउंटर पे नहीं मिलेगा, वहीं पे क्लिक करिए वेबसाइट पे, द फॉर्म विल ओपन, वहीं पे आप डिजायर्ड इंफॉर्मेशन फिलअप करिए, required documents attach करें and submit your form will be submitted. So no need to go from one place to another place to get the form, fill up the form, submit the form, नहीं, ये सब काम यहीं पे हो जाएगा। तो आप देखिए ई गवर्नेंस का सबसे पहले तो क्या किया, पहले स्टेज में हमने कहा कि नहीं सर हमें स्टेज इंफॉर्मेशन हमने डिस्प्ले कर दिया वेबसाइट में, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। फिर 6 महीने के बाद हमको लगा कि नहीं साहब, हमको थोड़ा सा जो इन्फॉर्मेशन ऑन डिमांड हम प्रोवाइड कर सकते हैं, लोगों को ऑन डिमांड प्रोवाइड किए, तो उनका काम और आसान बनाया। आगे चल करके जब आपका सिस्टम स्टेबल हो गया तो बोले नहीं, अब थोड़ा और इंटरेक्टिव बनाना चाहते हैं हम, अपने स्टेक होल्डर की लाइफ और इजियर करना चाहते हैं और हैप्पी करना चाहते हैं उनको। तो बोला पहले तो फॉर्म खरीदने के लिए उनको आना पड़ता था, अब आने की जरूरत नहीं है। अब बाय सिटिंग एट देयर ओन प्लेस दे कैन डाउनलोड द फॉर्म फ्रॉम हियर, और ऑनलाइन फॉर्म भर सकते, डाउनलोड करने की जरूरत नहीं, ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, फोटो पेस्ट करेंगे, जो भी करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड किया एंड सबमिट द फॉर्म फ्रॉम देयर। सो दीज आर द स्टेजेस ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ क्या, ई गवर्नेंस। तो हम लोग सिंपल स्टेज से स्टार्ट करते हैं, फिर थोड़ा सा और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उसको और रिस्पॉन्सिव सिस्टम को बनाते हैं, एंड देन फुल्ली रिस्पॉन्सिव मतलब टू वे कम्युनिकेशन जहां पर पॉसिबल हो सकता है करने का, मतलब फुल्ली इंप्लीमेंट करते हैं आईसीटी को। दीज आर द स्टेजेस ओवर हियर। तो आप देखिए यहाँ पर सर प्रोवाइडिंग द इंटीग्रेटेड, उसके बाद आगे चल करके, अभी तक तो हम लोगों ने रिस्पॉन्सिव बनाया, अब आगे इंटीग्रेटेड सिस्टम है। इंटीग्रेटेड का मतलब सारे ऑफिसेज आपने कनेक्ट कर दिए, अब सारे ऑफिसेज आपस में कनेक्टेड हैं। तो providing the integrated system which is capable of supporting all major activities and operations like online file processing and tracking, online NOC, integrated reports, e-purchase, e-tendering, e-healthcare, सारी चीजों को हमने क्या कर दिया सर, अब इंटीग्रेट कर दिया। पहले एक एक करके इंप्लीमेंट किया, फिर सबको इंटीग्रेट कर दिया। तो जैसे कि आप किसी को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए, कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है, सिटिंग एट योर ओन प्लेस यू कैन अप्लाई फॉर NOC, that NOC will be processed by the registrar of that university or principal of that college and that will be issued to you sitting at your own place मिल सकता है। तो by making use of ICT, I mean to say that you can make the life of the people more easier. उसके बाद बोलता है आप बहुत कुछ अच्छा हो गया सर हमारे यहाँ, तो अब अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप है कि आप एक्सक्लूसिव स्टूडेंट पोर्टल बना दिया कि देखिए स्टूडेंट पोर्टल, स्टूडेंट रिलेटेड सर्विसेज सबको हमने अलग कर दिया कि इसको क्लिक करिए, अब स्टूडेंट एडमिशन है, एग्जामिनेशन है, आपको रिजल्ट चाहिए, सिलेबस चाहिए, जो भी चाहिए वो सारी इंफॉर्मेशन आपको अलग मिल जाएगा। एम्प्लॉय के लिए आपने एक अलग पोर्टल बना दिया क्योंकि एम्प्लॉय रिलेटेड सर्विसेज अलग होती हैं, तो फॉर एम्प्लॉय यू हैव क्रिएटेड अनदर पोर्टल, जहाँ पे क्लिक करिए आर यू एम्प्लॉय, यस, तो आपसे एम्प्लॉय से रिलेटेड सारे सर्विसेज वहां पर अवेलेबल होंगी एंड यू कैन एंजॉय ऑल दीज सर्विसेज इन द ऑनलाइन मोड। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ ई गवर्नेंस। अच्छा, इतना होने के बाद बोले सब कुछ तो हो गया, ठीक, तो अभी भी सर हमको अपने कंप्यूटर पे आके सब सिस्टम में देखना पड़ता है, नहीं, अगला स्टेप ई गवर्नेंस का क्या है सर, you will have to open multiple channel to access services from the university। बोले नहीं सर अब आपको डेस्कटॉप पे नहीं आना पड़ेगा, आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं, अपने टैब से भी कर सकते हैं, अपने अदर डिवाइसेस से भी आप क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं ये सारी सर्विसेज। सो नो मैटर वेदर यू आर सिटिंग एट योर होम और ट्रैवलिंग, इवन यू कैन यूज your mobile phone to access all these services. So that is the last stage of what implementation of e-governance। तो यहाँ देखिए सर हम लोगों ने शुरू कहाँ से किया, बहुत बेसिक चीज से शुरू किया। शुरुआत हमने की कि नहीं भाई चलो शुरू करना है, तो पहले बस एक वेबसाइट बनाया, वहां पर इंफॉर्मेशन हमने सिर्फ डिस्प्ले कर दिया कि ये इंफॉर्मेशन है, वेरियस प्रोसेस। उसके बाद थोड़ा सा हमने कुछ और इंटरेक्टिव बनाने के लिए क्या किया, वी स्टार्टेड प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन ऑन डिमांड टू वेरियस स्टेक होल्डर। जैसे कि दिखाया हमने, लड़के अगर रिजल्ट चाहते हैं वो दे दिया, एम्प्लॉय को पे स्लिप चाहिए वो दे दिया, जो भी चाहिए उनको मिल गया, ठीक है। उसके बाद और इंटरेक्टिव बनाया सर अपने सिस्टम को, जहां पर सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर सके बंदा। इंटरेक्ट का मतलब बनाया कि ऑनलाइन फॉर्म भर सके, वहीं पर उसका फॉर्म सबमिट हो गया, पेमेंट भी हो गया, सब कुछ हो गया, ट्रैकिंग नंबर मिल गया एंड ही कीप्स ऑन ट्रैकिंग हिज और हर एप्लीकेशन ओवर देयर। चलिए, इतना होने के बाद अब बाकी जो सिस्टम्स थे हमारे सबको इंटीग्रेट भी आपस में कर दिया, सो दैट ऑल द सिस्टम्स आर
इंटीग्रेटेड विथ ईच अदर। और बहुत सारे एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे बताया, ई परचेस सिस्टम है, टेंडरिंग सिस्टम है, मैनेजमेंट सिस्टम है, उनको भी हमने कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया सर, आगे और स्टेप बढ़ना है तो एक एक्सक्लूसिव स्टूडेंट पोर्टल बना दिया, एक एक्सक्लूसिव एम्प्लॉय पोर्टल बना दिया। इसी तरह से अगर एम्प्लॉय को कोई सर्विसेज चाहिए वहां जाएगा, स्टूडेंट को कोई भी सर्विसेज चाहिए, ही और सी कैन एक्सेस दैट सर्विसेज फ्रॉम दैट पोर्टल। आगे चलकर क्या हमने बताया सर, ये पोर्टल तो सब वेबसाइट था, वेबसाइट का मतलब ये सब डेस्कटॉप पे खुल रहे थे, लैपटॉप में, तो यू विल हैव टू प्रोवाइड मल्टीपल चैनल्स एक्सेस सर्विस so that the university employee or the student can access your services through multiple channels। चैनल्स का मतलब बताया मैंने कि मोबाइल फोन से भी कर सके, अपने टैब से भी कर सके, तो मल्टीपल चैनल से भी एक्सेस कर सके। दिस इज हाउ द ई गवर्नेंस सिस्टम कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन योर और इन आवर यूनिवर्सिटीज। यहां तक सर क्लियर है तो बताएं सर। सर आई एम एक्सपेक्टिंग आंसर फ्रॉम योर साइड, इज इट क्लियर टू यू सर? Yes, sir, very much clear. Okay, fine. Another thing is there, अभी जो हमने बात किया उसी को समराइज करके यहाँ लिखा हुआ है कि इफ यू विश टू इम्प्लीमेंट ई गवर्नेंस सिस्टम इन योर इंस्टीट्यूशन तो क्या करना पड़ेगा सर, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट शुड अडॉप्ट ए प्लान्ड अप्रोच। प्लान्ड का मतलब एक पॉलिसी होनी चाहिए। सो प्लान्ड अप्रोच टू मूव फ्रॉम प्रेजेंट स्टेट टू फुल्ली फंक्शनल ई गवर्नेंस सिस्टम। कैसे करेंगे सर? तो ए फेज्ड इंप्लीमेंटेशन, मैंने आपसे बताया कि एक ही बार में नहीं करना है, ए फेज्ड इंप्लीमेंटेशन स्टार्टिंग फ्रॉम कहां से शुरू किया था हम लोगों ने, इंफॉर्मेशन शेयरिंग वेबसाइट से शुरू किया था। धीरे धीरे करके हम कहां पर आ गए, टू इंटरैक्टिव सिस्टम, जहां पर डिमांड पे हम दे रहे थे कि पे स्लिप देखना चाहता है देख लीजिए, लड़के को रिजल्ट देखना है देख लीजिए। टू ट्रांजेक्शनल सिस्टम, ट्रांजेक्शनल का मतलब जहां बोथ वे में हम ट्रांजेक्शन कर सकें, जैसे लड़के ने फॉर्म सबमिट कर दिया, पैसा जब सबमिट कर दिया, पेमेंट कर दिया, एंड सो टू कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन टू ई गवर्नमेंट सिस्टम विद फॉलोइंग ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स कैन बी अडॉप्टेड। क्या सर ऑब्जेक्टिव क्या है इन सब सारी चीजों का? टू फैसिलिटेट टाइमली डिलीवरी ऑफ सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी टू ऑल स्टेक होल्डर्स। पहला ही काम हमारा यही है कि हम फैसिलिटेट करते हैं टाइमली डिलीवरी ऑफ ऑल द सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन टू whom, to various stakeholders, maybe employee, maybe student, or maybe alumni, maybe parents, and like that. To provide a platform where involvement of all stakeholders is ensured for decision making। इसका दूसरा मकसद ये है कि हम लोग क्या करते हैं कि to provide a platform where involvement of all the stakeholders ensured for decision making। By doing so, हम एक प्रोवाइड करते हैं उनको प्लेटफॉर्म जहां पर बाकी स्टेक होल्डर्स भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पे क्या सके हिस्सा ले सकें वो लोग। टू ट्रांसफॉर्म द सिस्टम इनटू एक्सट्रीमली एफिशिएंट, सिक्योर एंड ट्रांसपेरेंट, रिजल्ट ओरिएंटेड। बताया हमें कि जब भी आप इंप्लीमेंट करेंगे द होल सिस्टम विल बिकम मोर एफिशिएंट, मोर सिक्योर एंड मोर ट्रांसपेरेंट एंड मोर प्रोडक्टिव। Another thing is there to facilitate the requisite technological support required to teaching and learning process। अभी तक सर हम लोगों ने जो बात किया बहुत से प्रोसेस की तो बात की, लेकिन टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस में अभी तक हमने एग्जामिनेशन का बात किया, एडमिनिस्ट्रेशन का बात किया, फाइनेंस का बात किया, अभी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में नहीं आए सर। तो ये भी है हिस्सा उसका ई गवर्नेंस का, टू फैसिलिटेट द रिक्विजिट टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट रिक्वायर्ड फॉर टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। तो टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस को एफिशिएंट बनाने के लिए और प्रोडक्टिव बनाने के लिए हम किस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट वी विल सी। And to collaborate with computer units, cell nominees for technological support, planning to all the constituent और वेरियस सेक्शन में जैसे एडमिशन सेक्शन है, फाइनेंस सेक्शन है, कंट्रोलर ऑफिस है, सबको आपने कर लिया। अब इनको आपस में क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है, सो दैट दे कैन टॉक टू ईच अदर इन द इंटीग्रेटेड फैशन, इन द सीमलेस मैनर, आई मीन टू से। सो दैट इज द वेरियस स्टेजेस फॉर फेज्ड वाइज इंप्लीमेंटेशन ऑफ ई गवर्नेंस। अब इतना जानने के बाद बोला हाँ सर ये हम कन्विंस हैं कि ठीक है अब हम लोग करना चाहते हैं, इंप्लीमेंट करना चाहते हैं ई गवर्नेंस सिस्टम इन आवर यूनिवर्सिटी, इन आवर कॉलेज। तो अब कैसे करेंगे, व्हाट आर द टेक्नोलॉजीज? सर हमको टेक्नोलॉजी के बारे में पता नहीं है कि कौन सा टेक्नोलॉजी हमको लेना चाहिए। अब दो ऑप्शंस हमारे पास हैं, वेदर वी हैव टू इंप्लीमेंट ई गवर्नेंस सिस्टम इन हाउस। इन हाउस का मतलब है कि ये सारा प्रोग्राम ऑटोमेट करने का प्रोसेस हमको अपने कॉलेज में स्टार्ट करना चाहिए, प्रोग्रामर रख लिया, कंप्यूटर रख लिया और यहाँ पे ऑटोमेट कर रहे हैं प्रोसेस को, या सर हम मार्केट में जाते हैं एंड देयर आर रेडीमेड प्रोडक्ट्स अवेलेबल, वहां से एक टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट हम खरीद के लाते हैं और अपने कॉलेज में इंप्लीमेंट कर देते हैं। एक ये भी अप्रोच है। जस्ट लाइक से फॉर एग्जांपल इफ यू नीड टू have a new shirt over there are two approaches over there, either you go to the market and if you find a shirt which fits your size or fits your body, maybe 40, maybe 42, maybe 44 number there, whatsoever number is there, if it fits to your body you purchase that shirt and you can wear it, no issue. That is, this model is known as off the shelf product.
So you purchase a ready-made product. It is available in the market. It is available on the shelf. You simply go over there, check if it fits your body, then you purchase it. Another approach is there. No, first we will go to the market, purchase some clothes over there, and go to the tailoring house, and the tailor will make measurement of my body, and accordingly he will stitch the shirt or prepare the shirt so that it fits to my requirement. So this is another approach of getting the shirt. Either you go to the market, buy a ready-made product, that is known as off-the-shelf product, or you can go to the market, purchase clothes from there, and get your shirt stitched according to your requirement. This is known as in-house development or tailor-made system. तो सर ये दो अप्रोच है, समझ गए आप सर? इस तरह से यहाँ भी क्या कर सकते हैं, अगर आपको ई गवर्नेंस इंप्लीमेंट करना है तो मार्केट में बहुत बने बनाए प्रोडक्ट हैं. जैसे से फॉर एग्जांपल हमको लाइब्रेरी ऑटोमेट करना, हम एग्जांपल के लिए ले रहे हैं, तो लाइब्रेरी के लिए सर लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के बहुत से प्रोडक्ट मार्केट में मिलते हैं, बहुत से मिलते हैं. से फॉर एग्जांपल लिब मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से मिलता है, लिबएमएस है, लिब मैनेजमेंट सिस्टम है, लिबसिस के नाम से मिलता है, बहुत सारे प्रोडक्ट है. तो जो भी आप खरीद के लाया अपने लाइब्रेरी में आपने इंप्लीमेंट कर दिया. एक तो ये अप्रोच है. तो उसमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको खरीद के लाना है, थोड़ा कस्टमाइज करना पड़ेगा. कस्टमाइज का मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर होता है तो अपने हिसाब से उसकी फिटिंग ठीक कर लीजिए, उसको कस्टमाइज कर लीजिए और इंप्लीमेंट कर दीजिए. दूसरा अप्रोच ये है कि नहीं साहब, हम क्या करेंगे, लाइब्रेरी को अगर ऑटोमेट करना है तो ठीक है, लाइब्रेरियन है, एक प्रोग्रामर हमने रख लिया. प्रोग्रामर का मतलब वो चीजों को जानता है, कंप्यूटर है, सॉफ्टवेयर है. अब वो लाइब्रेरी से पूछेगा, बताइए भाई आपका क्या रिक्वायरमेंट है, एंड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द लाइब्रेरी वो डिफरेंट प्रोसेस को, इशू प्रोसेस, रिटर्न प्रोसेस, कैटलॉगिंग प्रोसेस, जो लाइब्रेरी में होता है डिफरेंट प्रोसेस, उन सबको क्या कर दिया उन्होंने, ऑटोमेट कर दिया और कुल एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट का सिस्टम उसने बना करके दे दिया. ये दो अप्रोचेज हैं सर. तो जो हमको सूट करता हो, जो हमारे रिक्वायरमेंट को सूट करे, वो हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं. लेकिन देखिएगा सर जरा सा क्या है, पहले वाले अप्रोच की बात करते हैं कि अगर ऑफ द सेल्फ यानी रेडीमेड प्रोडक्ट लेते हैं तो क्या होता है, द राइट्स, सोर्स कोड and licensing remain with the publisher until the proper fees have been paid to allow the company permission. कहने का मतलब अगर रेडीमेड प्रोडक्ट लेकर के आए और उसमें कोई चेंज करना चाहते हैं तो दैट चेंजेस आर नॉट अलाउड सर, वो अलाउड आपको नहीं होगा. काहे कि वो तो सोर्स कोड है, राइट्स है, परमिशन सब उसके पास है. फिर उसी के पास आपको जाना पड़ेगा, उससे रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, देन he or she will make that changes and for that you will have to pay certain amount of fees. Other thing, the fees may be a one time licensing fees. अब जो प्रोडक्ट आप खरीदते हैं सॉफ्टवेयर का तो बहुत से मॉडल है खरीदने के, चाहे वन टाइम लाइसेंसिंग फी हो सकता है या मंथली सब्सक्रिप्शन हो सकता है और ऑन ए पर यूजर्स बेसिस भी हो सकता है. तो जो प्रोडक्ट आप खरीदते हैं, बहुत से तरीके हैं रेडीमेड प्रोडक्ट खरीदने के. तो एक बोलता है कि एक बार आपने खरीद लिया, मैंने 10 लाख रुपया दिया, प्रोडक्ट आपका हो गया, अब इसको आप यूज करिए. हाँ, अगर कोई अपडेट करना होगा, चेंजेस करना होगा, देन अगेन यू विल हैव टू कॉन्टेक्ट दैट कंपनी, लेकिन बाकी यूज कर सकते हैं. दूसरा तरीका है सर कि नहीं, इसका एनुअल सब्सक्रिप्शन आपने ले लिया कि आप यूज करिए, साल में आपको 2 लाख रुपया देना है. ठीक है, एक तरीका ये भी है. या यूजेस पर यूजेस बेसिस है कि नहीं साहब, हमारे पास 5 यूजर हैं, अच्छा ठीक है, 5 यूजर यूज करेंगे इसको या 20 यूजर यूज करेंगे, एक यूजर का हम आपसे 100 रुपया लेंगे एक मंथ का, तो उस रेट पे भी ये मिलता है. ठीक है, ये प्रोडक्ट क्या है सर, वन साइज फिट्स ऑल. ये बना हुआ रेडीमेड प्रोडक्ट है जो सबके लिए फिट होता है. कोई भी कंपनी वाला खरीद कर, कोई भी कॉलेज, किसी भी यूनिवर्सिटी में ले जाइए, अपने हिसाब से थोड़ा बहुत टेलरिंग करिए, जिसको कस्टमाइजेशन बोलते हैं, तो कस्टमाइज करिए और इसको यूज करिए. यू कैन कस्टमाइज, देखिए लिखा हुआ कहां तक कस्टमाइज कर सकते हैं, टू अ सर्टेन एक्सटेंट. बहुत ज्यादा कस्टमाइजेशन की गुंजाइश इसमें नहीं होती है, तो थोड़ा बहुत रद्दोबदल चेंजेस कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट, बाकी यूज करना पड़ेगा. अच्छा, एक सर ह्यूमन टेंडेंसी है, उसके बाद हम लोग बात. सर प्लीज कंफर्म मी वेदर आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू. यस सर. ओके. एक होता क्या सर कि कभी भी आप कोई चेंज करना चाहे अपनी यूनिवर्सिटी में, सिस्टम में, तो you will have to face certain resistance from the employees or from the stakeholder of that particular institution. जब भी हाँ वो चेंज अच्छाई के लिए क्यों ना हो, लेकिन शुरू में वो चेंज होगा. आप लोग सभी को याद होगा कि बहुत पहले जब ऑटोमेशन शुरू हुआ, आई रिमेम्बर इन 1984 समटाइम दैट, जब राजीव गांधी का टाइम था, बहुत बड़े पैमाने पे ऑटोमेशन हुआ. तो जो हमारे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया होती थी, उन्होंने रजिस्ट करना शुरू किया. अरे साहब नहीं, नौकरी चली जाएगी, फलाना चला जाएगा, ठिकाना चला जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा, ये हो जाएगा. बाद में पता चला, अरे नहीं साहब, इससे तो बड़ा फायदा हुआ, घर घर में मैंने टेक्नोलॉजी आ गई, ये आ गई, मैंने बहुत सारे फायदे हुए. लेकिन ये ह्यूमन नेचर है कि शुरू में रेजिस्टेंस होता है. तो यहाँ पर देखिए सर, द रेजिस्टेंस फ्रॉम यूजर और एम्प्लॉय विल बी वेरी हाई इन केस ऑफ द सेल्फ प्रोडक्ट.
क्योंकि उसको ये लगने लगता है कि कौन सा चीज खरीद के ले आया, अब हमको चीज सीखना पड़ेगा, नहीं सीखेंगे तो शायद हमें मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरा कुछ चला जाएगा, या हमारा इंक्रीमेंट नहीं होगा, हमारा प्रमोशन नहीं होगा। तो इस तरह का फियर सबके माइंड में होता है, जिसको लेकर रेजिस्टेंस होता है, वो लोग अडॉप्ट नहीं करना चाहते हैं। इसको कहते हैं टेक्नोलॉजी अडॉप्शन। तो देयर इज ऑलवेज ए प्रॉब्लम इन अडॉप्टिंग ए न्यू टेक्नोलॉजी इन द यूनिवर्सिटी। ये इस केस में होता है बहुत ज्यादा। किस केस में? रेडीमेड प्रोडक्ट में, जिसको हम लोग कहते हैं ऑफ द सेट। दूसरा क्या है सर? इन हाउस डेवलपमेंट। इन हाउस डेवलपमेंट का मतलब बात कर रहे हैं हम लोग। जी मलिक साहब बताइए। हाँ बोलिए। मैं हूँ क्लास में, आधे घंटे बस, ठीक है जी। हम लोग बात कर रहे थे कि टेलर मेड सिस्टम। टेलर मेड सिस्टम में क्या करते हैं? सिर्फ फॉर एग्जांपल कि हमको अपने एग्जामिनेशन सिस्टम को या एडमिशन सिस्टम को, किसी भी सिस्टम को, फाइनेंस सिस्टम को क्या करना है सर? ऑटोमेट करना है। तो हमने, ठीक है, वहां का आदमी तो काम कर ही रहा है जो हमारा डिपार्टमेंट में काम कर रहा था पहले से। अब हमने 2 प्रोग्रामर ले लिए, स्किल प्रोग्रामर। अच्छा, प्रोग्रामर जाता है, वो स्टडी करता है सिस्टम का आपका कैसे होना है, कौन सा प्रोसेस ऑटोमेट होना है, क्या क्या फैसिलिटी आप देना चाहते हैं, एंड अकॉर्डिंगली आपके नीड के मुताबिक आपसे पूछ के वो सिस्टम तैयार कर देता है। तो अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, वो पर्सन जिसके लिए वो सिस्टम बनाया जा रहा है वो इन्वॉल्व है प्रोसेस में। तो लग रहा है हमसे ही तो पूछ के बना रहे हैं सिस्टम। ही इज मेकिंग द सिस्टम एज पर आवर रिक्वायरमेंट, हमको कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं है। एंड ही इज फुल्ली कन्विंस्ड कि दैट सिस्टम विल मेक आवर लाइफ मोर इजियर, कि हमारा लाइफ बहुत आसान करने वाला है। तो यहाँ टेक्नोलॉजी अडॉप्शन का प्रॉब्लम नहीं होगा। whenever the product is ready, they will easily adopt that product and they will start working on that automated system. तो देखेंगे सर यहाँ पर आपको टेक्नोलॉजी अडॉप्शन में प्रॉब्लम नहीं होगी। बट बोथ अप्रोचेज आर देयर एंड डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट आप किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सर थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं कि ठीक है सर, ये भी बता दिया आपने, अब थोड़ा कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में बताइए कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं जिसका इस्तेमाल हम अपने इंस्टीट्यूशन में ई गवर्नेंस के इम्प्लीमेंटेशन में कर सकते हैं। सर अमल हलदार जी, योर माइक्रोफोन इज अनम्यूट, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। अमल जी, अमल हलदार जी, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ओके सर, तो हम लोग बात करते हैं सर कि we are having an overview of the technology, which kind of technology, what kind of technologies are available, so that we can implement e-governance system in our university using that technology. Amal Haldar sahab, please mute yourself. Amal sir, kindly mute yourself. Amal sir. अच्छा सर, हम लोग बात कर रहे थे सर कि जैसे आप देखिएगा सर, एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जिसको हम लोग कहते हैं सामर्थ ERP। सामर्थ ERP क्या है सर? एक मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने डेवलप किया इस प्रोडक्ट को। ये ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म है सर, नाम है इसका सामर्थ ERP, अंडर द नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी NMEICT प्रोजेक्ट की तरफ ये डेवलप किया गया। अब ये सामर्थ क्या करता है सर? ये आपको 32-35 मॉड्यूल्स है इसमें। तो आप अपने फाइनेंस मॉड्यूल को, आप अपने एग्जामिनेशन मॉड्यूल को, एडमिनिस्ट्रेशन मॉड्यूल को, वेरियस मॉड्यूल को क्या कर सकते हैं? इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ऑटोमेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोडक्ट। तो इस प्रोडक्ट को करने के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि हाँ हमें इस प्रोडक्ट को यूज करना है अपने सिस्टम को, या अपने यहाँ ई गवर्नेंस इंप्लीमेंट करना है, तो सिंपली आप गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को आपको लेटर लिखना है कि सर हम सामर्थ का हमें यूज करना है, आप हमें लॉगिन पासवर्ड दे दीजिए। तो सामर्थ एक क्लाउड बेस्ड सिस्टम है जो इंटरनेट पे है, कहने का मतलब। तो आपको वहां से क्या दे देंगे? वो आपके कॉलेज के लिए या आपके यूनिवर्सिटी के लिए एक यूनिक क्रेडेंशियल, मैंने यूनिक पासवर्ड वगैरह दे देंगे, जिसका इस्तेमाल करके आप उस सिस्टम को इस्तेमाल कर सकते हैं सर। एक तो सामर्थ्य, देखिए यहाँ पर बहुत से मॉड्यूल्स हैं, मैंने लिख दिया, जो लोग इससे वाकिफ है देख रहे होंगे। अकाउंट्स एंड फाइनेंस में बिल ट्रैकिंग है, फी मैनेजमेंट सिस्टम है, पेरोल मैनेजमेंट है, बजट एंड अकाउंट्स है, प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स है। इसी तरह से एकेडमिक्स में देखिएगा, प्रोग्राम मैनेजमेंट सिस्टम है, एकेडमिक्स मैनेजमेंट है, इवैल्यूएशन एंड ग्रेडिंग मैनेजमेंट है, रिसर्च मैनेजमेंट है, एंड सो। इसी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत मॉड्यूल है सर, ये सब देखिएगा। मैंने बताया 32-35 मॉड्यूल है इसमें। बेस मॉड्यूल भी है, स्टूडेंट रिलेटेड सर्विसेज हैं, स्टूडेंट फीडबैक है, एडमिशन है, एलुमनी पोर्टल एंड सो। सो दीज आर वेरियस मॉड्यूल्स व्हिच आर अवेलेबल ऑन सामर्थ पोर्टल। तो सामर्थ पोर्टल में ये सब अवेलेबल है सर, यहाँ जाकर के हम लोग देख सकते हैं। एक तो एक टेक्नोलॉजी है। दूसरी बात सर कहते हैं, तो सर बोलेंगे कि ये सब तो फाइनेंस मॉड्यूल, एग्जामिनेशन, पढ़ाने वाला, टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस में कौन सा काम है सर? तो यहाँ पर हम लोग बात करने जा रहे हैं कि व्हाट आर द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स व्हिच आर देयर इन द फील्ड ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। तो टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस में हम देखते हैं सर, इट हैज बीन एनविसाज्ड to leverage the potential of ICT in the teaching and learning process for the benefit for all the learners in higher educational institutions। तो यहाँ पर देखेंगे सर, मिनिस्ट्री ऑफ HRD ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस की इफिशियंसी को एनहांस करने के लिए, जहां पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम कर रहे हैं। तो एक बहुत ही
फेमस प्रोडक्ट है इनका या प्रोजेक्ट है जिसको कहते हैं हम लोग स्वयं, सभी लोग वाकिफ होंगे सर स्वयं से। तो स्वयं इनका एक पोर्टल है जहां पर ये ऑनलाइन कोर्सेज ऑफर करते हैं। तो यहाँ पर हर सेमेस्टर में, यानी सेमेस्टर इनका जनवरी में शुरू होता है और जुलाई में, हर सेमेस्टर में लगभग 700-800 कोर्सेज, नए कोर्सेज क्या होते हैं सर, ऑफर होते हैं। कोई भी स्टूडेंट जाकर के इन कोर्सेज में एनरोल कर सकता है और इस कोर्स को कंप्लीट कर सकता है। कंप्लीट करने का मतलब असाइनमेंट देना है, सेशनल देना है, फाइनल एग्जाम्स देना है, एंड इफ द सक्सेसफुली कंप्लीट्स द कोर्स ही और सी विल गेट एन सर्टिफिकेट। तो ये सर्टिफिकेट मिलेगा कि दिस स्टूडेंट हैज अर्न 4 क्रेडिट बाय सक्सेसफुली कंप्लीटिंग दिस कोर्स फ्रॉम स्वयं पोर्टल इन द ऑनलाइन मोड। ऐसा अगर उसने कर लिया तो फिर क्या होता है कि उसके इंस्टीट्यूट को, से फॉर एग्जांपल कि अलीगढ़ का एक लड़का स्वयं से कोर्स करके आता है, तो हमारे कंट्रोलर को क्या करना पड़ेगा, उसके ग्रेड शीट में ये बात लिखनी पड़ेगी कि इन द फर्स्ट सेमेस्टर दिस स्टूडेंट हैज अर्न 4 क्रेडिट बाय सक्सेसफुली कंप्लीटिंग दिस कोर्स इन द ऑनलाइन मोड फ्रॉम स्वयं प्लेटफॉर्म। तो ये क्रेडिट ट्रांसफर कहलाता है सर, ये है। इसी तरह से स्वयं प्रभा चैनल है, ये डीटीएच का चैनल है सर, जहां पर ये थ्रू आउट 24/7 मॉड्यूल्स में क्या होते हैं, इनके एजुकेशनल प्रोग्राम आते रहते हैं। से फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा कि आज हम 1 बजे से 2 बजे डिफरेंशियल कैलकुलस पे बात करेंगे, 2 बजे से 3 बजे मिडाइवल इंडिया पे बात करेंगे। तो डिफरेंट प्रोफेसर्स आते हैं, डिफरेंट एक्सपर्ट्स आते हैं और यहाँ पर एजुकेशनल प्रोग्राम्स चलते रहते हैं। तो दीज आर सम ऑफ, जो यहाँ पर लिखा हुआ आप देख रहे होंगे, दीज आर सम ऑफ द एजुकेशनल इनिशिएटिव्स अंडर दिस प्रोग्राम। आप देखा होगा सर स्पोकन ट्यूटोरियल एक बहुत अच्छा है, यहाँ 10 मिनट का ऑडियो वीडियो लॉन्ग मैसेजेस हैं, 10-10 मिनट के बने हुए वीडियो हर टॉपिक पे, अलग अलग टॉपिक पे, यहाँ जाकर के आप उससे देख सकते हैं, सीख सकते हैं। दूसरा सर वर्चुअल लैब है, जैसे हम केमिस्ट्री की लैब करते हैं, फिजिक्स की लैब करते हैं, बायोलॉजी की लैब करते हैं, तो वर्चुअली करना है। फॉर एग्जांपल हम सभी लोग जानते हैं कि सर 10th-12th में बायोलॉजी में हम लोग फ्रॉग का डिसेक्शन करते थे, है ना, एक मेढक को ला करके चीर-फाड़ करके सीखते हैं बच्चे जो मेडिकल वगैरह में जाना चाहते हैं बायोलॉजी में। यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है सर, यहाँ पर डिजिटली वो फ्रॉग होगा, आपके हाथ में डिजिटल वो होगा, क्या कहते हैं, सीजर्स। हाँ सीजर्स होंगे, उसके थ्रू आप कट लगा सकते हैं। सब डिजिटली हो रहा है, एक भी इसमें मेढक की जान नहीं जानी है, एक भी फ्रॉग का जान नहीं जाएगा। और जब आप बहुत एक्सपर्ट हो जाएं और सब कुछ वैसा ही दिखेगा आपको वर्चुअल लैब में, जब बहुत एक्सपर्ट हो जाएं तब एक ठीक है लाइव मेढक पे आप वो प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। तो इंस्टीड ऑफ किलिंग सो मेनी मेढक्स आप वर्चुअल लैब में काम कर सकते हैं। केमिस्ट्री के जो लोग ऐसा टाइट्रेशन समझते होंगे, तो टाइट्रेशन में क्या करते हैं सर, हम एक पिंक कलर का या एक कलर का लिक्विड है, दूसरे लिक्विड को मिलाते हैं, एक सर्टेन पॉइंट पे वो चेंज कर जाता है कलर। तो वहां पर आप देखेंगे कि सारा काम आप वर्चुअल लैब में भी कर सकते हैं। तो ये सब टेक्नोलॉजी का सर इस्तेमाल करके आप ये सारी चीजों को कर सकते हैं, यानी टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस को बहुत आप इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव भी बना सकते हैं। इसी तरह से मैंने कहा कि लाइब्रेरी की बात करते हैं हम लोग जब, तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, तो देयर आर सो मेनी लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम अवेलेबल इन द मार्केट, चाहे तो उसका इस्तेमाल कर लीजिए, या लिब, हमने कुछ लिखा हुआ नाम यहाँ पर, लिबसिस के नाम से आता है, लिब एमएस के नाम से आता है, ये सब फ्रीली अवेलेबल है मार्केट में। तो उसको भी आप लेकर के क्या कर सकते हैं सर, अपनी लाइब्रेरी में इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा सर, इतना दिखाने के बाद सर अब थोड़ा सा हम लोग बातचीत करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ यहाँ पे कि से फॉर एग्जाम्पल सामर्थ्य, अभी हम लोगों ने बात किया था, तो सामर्थ्य कैसा दिखता है वो पोर्टल में थोड़ा आपको दिखाता हूँ। देखिएगा सर यहाँ पर ये सामर्थ्य खुल करके आ गया, देख पा रहे सर, हमारा स्क्रीन अगर विजिबल है तो जरा हमें कंफर्म कीजिए सर, सामर्थ्य दिख रहा है सर, यहाँ दिख रहा कि नहीं सर, बताइए थोड़ा। यस ये दिख रहा है सर, दिख रहा है, अच्छा वेरी मच विजिबल। अब देखिएगा सर यहाँ पे कि मान लीजिए कि एक साहब ने अभी देखिएगा यहाँ परवेज अहमद सिद्दीकी साहब, आप अगर देखिएगा यहाँ पर, ये हमारे यहाँ यूडीसी है, इन्होंने सीएल की एप्लीकेशन दी है, इसकी एप्लीकेशन दी है, देख रहे हैं सर, ये 2 नंबर पे देखिएगा सर लिखा हुआ है परवेज सिद्दीकी, यहाँ पे देखिए सर लिखा हुआ है, ये विजिबल है सर, सीएल इन्होंने मांगा है, और कब का सीएल मांगा, 11 तारीख का मांगा, देख पा रहे हैं सर, ये 11 तारीख का, एक दिन का सीएल, 11/5 कह रहे हैं, मेरी बात देख पा रहे हैं सर, विजिबल है, जरा कंफर्म करेंगे सर हम थोड़ा। यस सर, विजिबल। ठीक है ठीक है। अब देखिए ये किसका पोर्टल है, देखिए ऊपर लिखा हुआ है चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस का ये पोर्टल है, यानी चेयरमैन के, हम अभी चेयरमैन के लॉगिन से लॉगिन है, और यहाँ पर हमने देखा कि 2 रिक्वेस्ट पड़े हुए हैं। दूसरा नंबर का रिक्वेस्ट परवेज सिद्दीकी का देखिए 11 तारीख का सीएल का है। अब बीइंग ए चेयरमैन पहले हम इसके रिक्वेस्ट को देखते हैं सर, तो हमने यहाँ क्लिक किया तो देखिए पूरा रिकॉर्ड दिख गया, ये परवेज सिद्दीकी साहब हैं, डिपार्टमेंट में काम करते हैं, यूडीसी एडमिन है, ये नॉन टीचिंग सीएल के लिए इन्होंने अप्लाई किया है, 11 तारीख का इन्होंने अप्लाई किया है, पर्सनल वर्क के लिए जाना चाह रहे हैं, स्टेशन लीव भी इनको चाहिए, इसका मतलब बाहर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, तो दिल्ली जा रहे हैं, कहने का मतलब इनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने घर से बैठे बैठे इन्होंने ये एप्लीकेशन भेज दिया। ये एप्लीकेशन तुरंत हमारे पास देखिए सर आ गया, जैसे चेयरमैन हम देख पा रहे हैं, मेरे मेल पर पे आ गया, जैसे ही ये अप्लाई करेंगे मेरे पास आ जाएगा कि परवेज साहब ने छुट्टी के लिए अप्लाई किया है, आपको जो एक्शन लेना है लीजिए।
तो देखिए सर यहाँ पर देखिएगा क्या लिखा हुआ, जरा गौर करिएगा। सैंक्शन अथॉरिटी कौन लिखा हुआ सर? सैंक्शन अथॉरिटी में क्या लिखा हुआ, पढ़िए सर, पढ़ के बताइए क्या लिखा हुआ है। Chairperson. Chairperson Chairperson of of the Computer Science. Department of डिपार्टमेंट इसको Computer सैंक्शन Science. करेगा। अभी स्टेटस क्या है सर? अभी स्टेटस देखिए क्या है इसका, क्या है स्टेटस इनका? अभी पेंडिंग है, यानी It's pending. चेयरपर्सन ने अभी इसको अलाउ नहीं किया है, सैंक्शन नहीं किया है। अब हम सर चेयरपर्सन हैं इस वक्त, और हम क्या करते हैं, देखिए इनके छुट्टी को हमने सैंक्शन कर दिया। देखिए सर यहाँ पर स्टेटस सैंक्शन है और सबमिट कर दिया, माने हमने इनको छुट्टी ग्रांट कर दी 11 तारीख की, 11 को दिल्ली जा सकते हैं। तो देखिएगा सर जैसे ही मैंने 11 तारीख की छुट्टी इनकी सबमिट की, देखिएगा ये लिख करके आ गया सर, मेल सेंड सक्सेसफुली। एम्प्लॉय को मेल चला गया कि आपकी छुट्टी 11 तारीख की क्या हो गई, ग्रांट हो गई। देखिए सर ये छुट्टी ग्रांट हो गई इनकी 1 दिन की। और यहां पर देखिएगा सर जो आ रहा था सैंक्शन में चेयरमैन पेंडिंग आ रहा था, देख रहे होंगे आप। अब क्या आ रहा सर इनका, क्या लिख करके आ रहा है स्टेटस? स्टेटस में देखिए सर क्या आ रहा है, डन डन। यानी इनकी छुट्टी हो गई। इनकी छुट्टी क्या हो गई सर, सैंक्शन हो गए। आई मीन टू से कि आप अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं ये सारा प्रोसेस बहुत आसान हो जाता है। पहले क्या होता, उनको एप्लीकेशन देना पड़ता, चेयरमैन साहब देखते नहीं देखते, क्या करते कब देते। अभी घर बैठे इनको पता चल गया कि हाँ साहब हमारी छुट्टी सैंक्शन हो गई। अब देखिएगा हम सैंक्शन रिक्वेस्ट में हमारे पास कितनी 2 रिक्वेस्ट पड़े हुए थे यहाँ, 1 और 2। देखिए सर अब 2 नंबर गायब हो गया यहाँ से, 11 तारीख वाला सैंक्शन गायब हो गया ना सर, क्योंकि उनको सैंक्शन कर दिया ना। मेरी बात समझ रहे हैं सर? तो ये सामर्थ है। हमने आपको एक लीव मॉड्यूल दिखाया, इसमें और बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, फाइनेंस के भी मॉड्यूल है, गवर्नेंस का मॉड्यूल है, सपोर्ट का मॉड्यूल है, ये है। चलिए अब थोड़ा सा सर मैं आ जाता हूं, आपको दिखाता हूं दूसरी टेक्नोलॉजी की जो हम बात कर रहे थे कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम होता है सर। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब है कि टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आप लर्निंग प्रोसेस को ईजियर बना सकते हैं। शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू द स्टेक होल्डर, यानी अपने स्टूडेंट के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करना, सर्विसेज प्रोवाइड करना, इस चीज को आसान बना सकते हैं। कैसे? एक टेक्नोलॉजी को हम दिखाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, एलएमएस। तो देखिएगा मैं यूनिवर्सिटी का वेबसाइट ये खुला हुआ आपको दिख रहा होगा, सबसे ऊपर में देखिए सर एलएमएस को मैंने क्लिक किया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ये बहुत सारे एलएमएस हैं। मैं फैकल्टी ऑफ साइंस में आता हूं, तो फैकल्टी ऑफ साइंस को मैंने क्लिक किया, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस को क्लिक किया। इसमें बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट। हमने पोस्ट ग्रेजुएट को क्लिक किया, हमने इवेंट सेमेस्टर को क्लिक किया। तो इवेंट सेमेस्टर में देखिए हमारा एक कोर्स है नेटवर्क प्रोग्रामिंग। इसको जैसे ही मैंने क्लिक किया, ये हमसे सर एज ए टीचर मैं हूं, तो हमसे मेरा मांगेगा क्रेडेंशियल, तो हमने अपना क्रेडेंशियल इनको दे दिया यूजिंग पासवर्ड और यूजर नेम जैसे मैंने दिया। तो देखिए सर ये हमारा नेटवर्क प्रोग्रामिंग का कोर्स खुल के दिख रहा है, जो सारे स्टूडेंट को दिखेगा। नेटवर्क प्रोग्रामिंग ये कोर्स का नाम है, मेरे कोर्स का ये टाइटल है। ठीक है सर। कोर्स टीचर कौन है, देखिए लिखा हुआ है प्रोफेसर आसिम जफर है। कोर्स का नाम क्या है, नेटवर्क प्रोग्रामिंग नाम है। इसमें क्या होता है, 4 यूनिट है, जो चीजें पढ़ाई हुई लिखी हुई है सर यहाँ पर सारी बातें। अनाउंसमेंट, हमको अगर कुछ अनाउंसमेंट करना है, लड़कों को बोलना है कि परसों हमारी क्लास 12 बजे से होगी या कल एग्जाम लेंगे, जो भी बात करनी है यहाँ पे अनाउंसमेंट में लिख सकते हैं। जैसे अनाउंसमेंट करेंगे सारे बच्चों को जो इस कोर्स में इनरोल्ड है वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। हमने कहा था कि मूक्स में जाके ये कोर्स कर लो, तो ये भी दे दिया। असाइनमेंट हमने इनको कुछ दिया था, इन सभी लड़कों ने असाइनमेंट जमा कर लिया। देखिए सर असाइनमेंट हमने ये क्लिक करिए, क्या असाइनमेंट दिया था दिखाइए। तो देखिए ये असाइनमेंट हमने दिया, देखिए सर ये असाइनमेंट खुल के आ गया कि मैंने ये असाइनमेंट बच्चों को दिया था। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5, ये आपके इसका आंसर लिख करके हमने लिखा था ओनली हैंड रिटेन असाइनमेंट शुड बी एक्सेप्टेड। तो चलिए हैंड रिटेन असाइनमेंट इन लोगों ने करके जमा कर दिया। बोले दिख कहाँ रहा सर ये असाइनमेंट? तो देखिए सर ये पूरा डेटा यहाँ पर रहता है। पार्टिसिपेंट 57 है, उसमें से 50 बच्चों ने सबमिट किया है, 7 ने किसी वजह से नहीं किया। बोलिएगा दिखाइए तो सर, तो वी ऑल सबमिशन पे चले गए, देखिए आ गया। अब देखिए मनीष कुमार सिंह एक बच्चा है, बोले इसका असाइनमेंट दिखाइए। तो देखिए यहाँ से बैठे बैठे आपने क्लिक किया, देखिए सर इसका असाइनमेंट आपको बैठे बैठे दिख रहा। ये नेटवर्क प्रोग्रामिंग, ये मनीष कुमार का असाइनमेंट है। अब इसने जो भी क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 में जो भी किया, यहीं से आप बैठे बैठे इसको जांच लीजिए। जांचने के बाद यहीं से इनका मार्किंग कर दीजिए और ग्रेड में इनका नंबर चढ़ा दीजिए। जो भी नंबर देना है इनको, नंबर देना जो भी 50 में से जो भी नंबर देना, यहीं पे आप ग्रेडिंग कर सकते हैं। तो आई मीन टू से ये सारा काम सर कितना आसान हो जाता है, स्टूडेंट के लिए भी टीचर के लिए भी। यहीं पे आप अपने क्लासरूम में जाने की जरूरत है, कहीं जाने की जरूरत नहीं, यहीं पे हो गया। अच्छा सर बोलिए यहाँ तक तो ठीक है, और दिखाइए सर क्या है। अच्छा बोलिए देखिए सर क्विज भी हमने कराया था। अच्छा तो यहीं से बैठे बैठे आप क्विज भी करा सकते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्विज यहाँ बना दिया, लड़के को बता दिया कि 10 बजे से 11 बजे तक क्विज का पोर्टल खुला रहेगा, आप लोग तो देखिए सर यहाँ लिखा हुआ है दिस क्विज इज क्लोज्ड। ये तो क्लोज हो गया, खत्म हो गया है। ठीक है, कितने लड़कों ने इसको अटेम्प्ट किया? 61 लड़कों ने किया। बोले दिखाइए तो सर, तो 61 का नंबर दिखाइए। तो देखिए सर यहाँ से सब क्या बार है। देखिए भास्कर लोधी नाम का लड़का है, ये है, इसको आए हैं 20 नंबर।
इसने किसने कितना सही किया, कितना गलत किया, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 पूरा डेटा यहाँ सब के लिए आपको दिखेगा सर। पूरे 61 स्टूडेंट के लिए यहाँ पर दिख रहा है, और चार्ट भी बना हुआ है कि कितने नंबर, कितने स्टूडेंट के 15 नंबर आए, कितने के 16 आए, कितने के 20 आए। ईच एंड एवरीथिंग इज रिटन ओवर हियर। यहाँ पर देखिए सर, इस लड़के का किसने गलती किया, किसने सही किया। देखिए इस लड़के ने 2 क्वेश्चन सही किया, ये गलत किया, गलत किया, गलत किया, गलत किया, देखिए पूरा गलत किया। तो जिसने गलत किया, सही किया, ये पूरा यहाँ पर दिख रहा है। इन बच्चों ने कौन सा क्वेश्चन नंबर सही किया, कौन सा गलत किया, तो सारी चीजें जैसे ही आप क्विज कंडक्ट करेंगे सारा रिजल्ट यहाँ पे आ जाता है। सो आई मीन टू से आप टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में भी क्या कर सकते हैं सर, आईसीटी का इस्तेमाल करके यू कैन मेक इट मोर इफिशिएंट एंड मोर। एक लास्ट चीज मैं आपसे बता देता हूँ सर, स्वयं। तो स्वयं मैंने बताया कि ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो आपको स्वयं देखना। देख लीजिए सर, स्वयं विजिबल है आपके स्क्रीन पे सर, बताइएगा। ये स्वयं का प्लेटफॉर्म है सर। Yes, sir. यहाँ पर आप देखिए स्वयं ऑल कोर्सेज में क्लिक किया हमने, तो देखिए जितने भी कोर्सेज यहाँ पर हो रहे हैं ये स्वयं पे देखिए सारे कोर्सेज आ जाते हैं। देखिए सर यहाँ पर सारे कोर्सेज के नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दिए हुए हैं, है ना। तो यहाँ पर मान लीजिए कि आप ICT CIMB INI का कोर्स देखना चाहते हैं, मान लीजिए। अच्छा अभी INI नहीं है, तो मान लीजिए कि आप NPTEL, देखिए सर NPTEL के बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पर है। तो बेसिक ऑनगोइंग कोर्सेज देखिए यहाँ पर, देखिए सर AI इन मार्केटिंग, ये इतने सारे कोर्सेज, बहुत सारे कोर्सेज है सर, ये NPTEL के चल रहे हैं इतने सारे। हम आपको दिखाने के लिए एक पहला कोर्स दिखा देते हैं सर। देखिए AI इन मार्केटिंग, इसको क्लिक किया सर। ये जो आपको रेक्टेंगल दिख रहे हैं सर, ये सब अलग अलग कोर्स के नाम है, ये सब अलग अलग। हम एक कोर्स दिखाते हैं इसमें, AI इन मार्केटिंग को मैंने क्लिक किया। तो देखिए सर AI इन मार्केटिंग में इस वक्त देखिएगा सर कि कितने बच्चे इनरोल्ड है सर, 31,622 स्टूडेंट्स आर इनरोल्ड। देख पा रहे हैं सर, 31,000 बच्चे इस कोर्स में इनरोल्ड है AI इन मार्केटिंग में। ये उस कोर्स का डिटेल लिखा हुआ, कब शुरू हुआ, कब एग्जाम होगा, नहीं हुआ, सारी चीजें यहाँ राइट हैंड साइड पे लिखी हुई है। इसमें शॉर्ट वीडियो एक होता है सर, जहां पर ये कोर्स कोऑर्डिनेटर बता रहे हैं कि इस कोर्स में क्या क्या कवर करेंगे। तो देखिए सर ये क्या क्या कवर करेंगे, पूरा कोर्स लिखा हुआ कि वीक 1 में ये करेंगे, 2 में ये करेंगे, 12 वीक तक का पूरा चीज यहाँ दिया हुआ है। ये बुक रेफरेंस दिया हुआ है, ये इंस्ट्रक्टर का बायोग्राफी भी दिया हुआ है। अब आप चाहते हैं कि इस कोर्स में इनरोल होना, तो यहाँ पर एक इनरोल बटन होता है, उसको सिंपली, ये तो इनरोलमेंट क्लोज हो चुका है, जिसमें इनरोलमेंट ओपन है उस पर क्लिक करेंगे, आप आसानी से क्या कर सकते हैं, इनरोल कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी दिखाया सर आपको अपकमिंग कोर्सेज में, देखिए मान लीजिए कि ये कोर्सेज है बेसिक कोर्स इन बायोमेडिकल, इसको क्लिक किया तो देखिए सर इस वक्त तक इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 2,10,000 बच्चे इनरोल हो चुके हैं अब तक। ये कोर्स अपकमिंग है सर, बाद में चलेगा। अब ज्वाइन आप भी पढ़ लिया, आपको लगता है हाँ मेरे काम का कोर्स है, तो आप यहाँ पर ज्वाइन जैसे ही क्लिक करेंगे, आपसे आपके क्रेडेंशियल पूछेगा, नाम पता पूछेगा, आप इसको ज्वाइन करके क्या कर सकते हैं सर, इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। सो आई मीन टू से by making use of technology, you can make the teaching and learning process more interesting, more efficient and more productive. ये सारे काम सर आप कर सकते हैं। तो not only the administrative function, एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब आप फाइनेंस डिपार्टमेंट को, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट को, उसको तो कर ही सकते हैं ऑटोमेट, ई गवर्नेंस के। आप अपने टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस को भी सर क्या कर सकते हैं, ऑटोमेट कर सकते हैं, फॉर मेकिंग द होल प्रोसेस मोर efficient. So this was all about the e-governance and its implementation in our institution. आप now I am open for the question answer session. आपके पास सर अगर कोई क्वेश्चंस हो तो एक एक करके सर आप सवाल पूछिए. Please raise your hands and ask the question, please. Hello sir, I'm Dr. Barkha. I'm from Government Degree College, Uttarakhand. So first of all, thank you for the insightful lecture, and I genuinely appreciate the clarity of your presentation. But there is one question that constantly perplexes me a lot. Okay, fine. That though the things told by you must have already been implemented by most of the universities and colleges, sir, long back. So in my opinion, and very humbly I say, I don't know about the other people, but the presentation should have been a little more advanced, sir. And so the question is, as the biggest threat to e-governance is cybersecurity breaches, like hacking attempts and data interventions. So, sir, what are the privacy implications of collecting and using people's data by e-governance system? Okay, I got it. Point. So I have already during my interaction, I have already told you there are certain apprehensions in the mind of the people. Always apprehensions are there. देखिए मैम, हम लोग जब ये बैंकिंग सिस्टम ऑनलाइन हुआ तो हम लोग कोई यूज नहीं कर रहे थे। सबके मन में यही बात था कि हैक हो जाएगा और हमारा पैसा चला जाएगा, कोई हमारा बैंक अकाउंट ले जाएगा। लेकिन आप अब देखिए डेटा निकाल करके कि कितने हैकिंग के केसेस हुए। अब एक रिक्शा वाला भी यूपीआई कर रहा है, एक सब्जी वाला भी यूपीआई कर रहा है, ऑटो वाला भी यूपीआई का इस्तेमाल कर रहा है। हम लोग ऑनलाइन I'm intervening, sir. Recently, there is an instance in मैडम देखिएगा, there is one instance है ना, जबकि that can be with us sometimes. हाँ, ये ट्रांजेक्शन जो हो रहा है, करोड़ों में ट्रांजेक्शन हो रहे हैं।
देखिए हम घर में भी रहते हैं तो कभी कभी चोरी हो जाती है, तो घर को हम छोड़ नहीं देते हैं बल्कि उसको सेफ एंड सिक्योर बनाने का उपाय करते हैं। सो दिस काइंड ऑफ मेजर्स आर ऑलवेज अवेलेबल विद द टेक्नोलॉजी, कि हम भी जो कंप्यूटर साइंटिस्ट है दे कीप ऑन वाचिंग ऑल द थिंग्स, जहां पर उनको लूप होल मिलता है दे ऑलवेज ट्राई टू फिक्स अप दैट पोस्ट, और ये बहुत सेफ एंड सिक्योर है। अच्छा, हमारे केस में एज ए टीचर हमसे क्या लूट के ले जाएगा? हमारा कोर्स है, देख लो हमारा कोर्स, हैक कर लो। हम तो बैंकिंग सिस्टम नहीं है, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं ना। तो हमने अपने एडमिशन प्रोसेस को बनाया, एडमिशन प्रोसेस में क्या घपला कर लेगा कोई कर करके। तो अच्छा, टेक्नोलॉजी अपने आप में क्या है, बहुत सिक्योर है। हमने अपने प्रेजेंटेशन में कहीं आपको दिखाया था। अच्छा, अब ये साइबर सिक्योरिटी का जो मसला है ये एक अलग डिस्कशन मांगता है 1.5 घंटे का, जहां पे हम आपको बता सकते हैं कि क्या चैलेंजेस है और उस चैलेंजेस को कैसे ओवरकम हम लोग कर सकते हैं। लेकिन हम अपना एश्योरेंस एज ए कंप्यूटर साइंटिस्ट आई एम गिविंग यू एश्योरेंस कि आप धड़ल्ले से इस्तेमाल करिए। टेक्नोलॉजी आजकल इतने सिक्योर है कि रेयर चांसेस हैं हमारे आपके साथ। हम तो बहुत दिनों से इस्तेमाल कर रहे हैं, आप लोग भी 10 साल से कम बैंकिंग तो इस्तेमाल कर ही रहोगे, पैसा निकालना ये करना। कितना किसके साथ कितना अब तक घपले हुए या हैकिंग हुआ, एक आध बड़े केसेस, क्योंकि हैकर भी जो होता है हमारे आपके अकाउंट में वो सेंध नहीं लगाता है, वो जाकर के बैंक में कुछ कोशिश करता है जहां उसको बड़ा माल मिले, बड़ा फायदा हो, कि वो तो कोई गली का चोर नहीं, वो भी कंप्यूटर साइंटिस्ट है, तो वो बड़ा काम करना चाहता है। अच्छा, वो टेक्नोलॉजी को स्टडी करता है, उसके लूप होल को स्टडी करता है और उसका इस्तेमाल करके कभी कभी हैकिंग कर लेता है। लेकिन जैसे ही पता चलता है लोगों को, उसका रोकथाम की भी हम लोग कोशिश करते हैं। सो ऑलवेज देयर इज ए सेफ्टी मेजर्स ऑलवेज देयर, तो आप उससे बिल्कुल ना घबराएं मैम, है ना, यूज करिए। Thanks for the assurance, sir. Thank you. Any other question from the side? Any other question from the participants? Please go ahead. Participants, please try to make these interactions but interactive. पूछिए सर, तब हमें भी समझ में आएगा, और कोशिश करें कि अपने यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, अपने डिपार्टमेंट में इसको इम्प्लीमेंट करें। कहीं से पैसा नहीं लगना है सर, मैंने कहा कि आपको सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में एक लेटर लिखना है, सामर्थ्य का आपको पासवर्ड और वो मिल जाएगा अकाउंट, आप यूज करना शुरू कर दीजिए। फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे यू कैन स्टार्ट। सिर्फ क्या चाहिए, आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप होना चाहिए आपके कॉलेज में, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइनेंस मॉड्यूल, एडमिशन मॉड्यूल, जो भी मॉड्यूल आप चाहें, जैसे चाहे एक एक करके आप इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। इसी तरह से लाइब्रेरी को करना चाहें फ्रीवेयर, फ्रीवेयर का मतलब नेट पे जाइए, वो फ्रीली अवेलेबल सिस्टम से आप डाउनलोड करिए और अपना यूज करना इस्तेमाल करिए, कोई लाइसेंसिंग फीस नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। तो दैट डिपेंड्स ऑन योर विल बेसिकली, कि आप कितना काम करना चाहते हैं, कितने प्रोसेस को ऑटोमेट करना चाहते हैं, जस्ट टू मेक योर स्टेक होल्डर्स हैप्पियर। हैप्पियर का मतलब आप अपने स्टूडेंट को खुश रख सकते हैं, अपने एम्प्लॉय को खुश रख सकते हैं बाय डूइंग ऑल दिस थिंग्स। Any other question? Please go ahead, participants. I am waiting for your question. Participants, if you have any question, sir is here. You can ask, and if you have any query or suggestions, you can discuss with sir. Participants. If you right now, if you don't have any questions, no issue. Yes. If any time, if I you think, want, sir, your lecture is very much clear as far as the e-governance is concerned. this is And very, I think most of the participants have able to understand each and every concept which you deliver today, sir. I appreciate. So if any participant wish to talk about SWAM, or because I am SWAM coordinator of Yes, sir. Yes, this sir. What I told you. university. So anybody, if you have any question regarding SWAM or anything, you can easily reach to me. Simply go to the university website, and you go to the computer science department. You go to computer science department, and you can have my details over there. So no need to go anywhere. Computer science, go to faculty members,